Today we will be covering the major topics, which are what is hackathon, what is Hacknovate 3.0, and at the last we will be talking about Hacktoberfest challenge. So without any further delay, I would like you to meet our three mentors, which is Tarun sir, who is an alumni of our college, and after that we will switch to Satyarth sir and Pawan sir, who are final year students of our college. So Tarun sir, over to you. Thank you so much, Kanish and DSC, for giving me this opportunity. So as you all know, the today's topic that we are having session on is Hack the October, because in this October month we are having many great things that are coming up. Hacktoberfest, Hacknovate 3.0, and many different hackathons are also going on. And I think I'm audible. No? If there is some voice issue, you can just let me know. Good. Yes, sir. Yeah. So because of all these, we are just having this session so that we will let you all of you know कि ये सारे hackathons and why should you participate. Firstly, what is this? What all these events are, and why should you participate? That's the most important thing that you should know. I think I should be preparing a PPT, but I have not. I think. So ऐसे ही start करते हैं. ठीक है. रुकिए मैं शेयर कर सकता हूँ. करो. एक पीपीटी मैंने उठा लिया है नेट से. एक मिनट भैया. हाँ हाँ. आप उसको रेफरेंस लेके कर देना. एक मिनट. कुछ तो मिल ही जाएगा. Yes. हाँ, I think कुछ भी advanced है. First of all, guys, anyone want to take like what is a hackathon? Like What is hackathon? कोई बोलना चाहेगा? Basically, what is hackathon? If you know about SIH and all these hackathons that like MLH, Hacknovate, you are already participating in Hacknovate. So basically, what is a hackathon? Anyone from audience? Yes. Because हर साल students have very different, very diverse views on the word hackathon. So. Anyone? बिल्कुल इनफॉर्मल है, कोई ऐसा फॉर्मल सेशन नहीं है. इट्स नॉट योर क्लास जहाँ पे टीचर बोलते हैं और तुम लोग म्यूट करके भाग जाते हो. क्लास में मत. एनीवन? हाँ मुकुल बता. हाँ मुकुल. उसमें जो मुझे पता था वो ये था कि कोई टास्क या कोई प्रोजेक्ट होता है जिस पे वर्क करना होता है टीम के साथ. एक हो, दो या तीन लोग मिलके किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं. पर मैंने तो कुछ डरावना से ही सुना था कि नींद उड़ जाती है लोगों की. ओके, काफी डिफरेंट, काफी लाइक टुवर्ड्स द रियलिटी वाला परसेप्शन है ये. बिकॉज़ एक्चुअली सच नहीं बोलना था क्योंकि लास्ट मिनट में सीरियसली यही होता है. सो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज अ हैकाथॉन, एंड ये स्लाइड बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है उस चीज़ का. सो बेसिकली हैकाथॉन वर्ड थोड़ा सा लाइक यू नो कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हम यहाँ कहते हैं हैकाथॉन मतलब कोई चीज़ हैक करनी है ऐसा लगता है सुन के. बट एक्चुअली हैकाथॉन में बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज, जैसा कि मुकुल ने ही बताया, यू आर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट. यू आर क्रिएटिंग समथिंग. प्रोजेक्ट भी नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रोजेक्ट भी कहना सही नहीं है. यू आर क्रिएटिंग समथिंग. कुछ भी आप लोग बनाओगे इन अ कंटिन्यूस फैशन. टीम वाइज बनाओ, इंडिविजुअल का तो नहीं रहता, नॉर्मली 2 या 3 लोग होते हैं. ठीक है, टीम वाइज आप लोगों को कुछ बनाना होता है इन द गिवन टाइम एंड उसको फिर प्रेजेंट करना होता है. ठीक है, दिस इज व्हाट आई थिंक इज हैकाथॉन. Satyarth, you want to add? Yes, of course. So guys, basically hackathon is made up of 2 words, hack and marathon. So basically hacking means not hacking like you are a black hat hacker, white hat hacker. Basically, hackathon hacking means you have to build solution of any problem, like real world problem, the problems which are there in your surrounding. So if you are solving that problem, basically you are hacking that. Okay. And the second thing is marathon. If you know about marathon is a time based, you can say, competition where people run and all that. So hacking in limited times make a hackathon. तो ये पूरा एक hackathon का एक वर्ड है कि मतलब why hackathon. तो इसीलिए हैकिंग और मैराथन. तो एक टाइम लिमिट में तुम कोई भी प्रॉब्लम, इसको अगर तुम सिंपली समझो तो
टाइम लिमिट में, एक पर्टिकुलर टाइम में तुम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो ये तुम्हारा हैकाथॉन हो गया। तो हाँ भैया बिल्कुल। So with this a basic definition I want to ask firstly, किसी ने किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है? आई थिंक हैकनोवेट 1.0 में किया होगा ना ये सब, उस टाइम फर्स्ट ईयर में तो थे। अच्छा कुछ क्या मतलब पड़ोसी का वाईफाई चुराना हैकाथॉन नहीं होता? हैकनोवेट से तो सभी ने स्टार्ट किया, बहुत लोगों ने स्टार्ट किया होगा यहाँ पे। मैंने खुद ही किया हैकनोवेट 1 से। अच्छा गाइस, इस सेशन को वी विल ट्राई टू कीप इट इनफॉर्मल। हम लोग भी आपस में बात करते रहेंगे ताकि और अच्छे व्यूज़ निकलें, आप लोग को भी बात करते रहना है साथ में, तो दैट हम उस चीज़ को बेटर वे में ट्रांसमिट कर पाएंगे। सो विद अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ हैकाथॉन, द पॉइंट इज, जो सबसे मेन कन्फ्यूजन आता है कि यार मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो मैं हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करें ही क्यों, हमको क्या मिलता है, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग विच यू गेट फ्रॉम द हैकाथॉन मेरे हिसाब से इज एक्सपीरियंस, दैट इज़ द मेन थिंग। आपको मतलब प्राइजेस बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि हमारे इस बार हैकनोवेट में भी वी आर गिविंग 21,011 and 5 and there are other perks also. So that is there, cash prizes, swags, all those things, all those cool things are there, जिसको आप फिर कई दिन तक फ्लेक्स करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट द मेन थिंग विच यू आर गेटिंग इज एक्सपीरियंस। ओके, किसी को मतलब इस चीज़ पे कुछ कहना है तो यू कैन जस्ट ओपन अप एंड कैन स्पीक। गाइस प्लीज सेशन को थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखते हैं, तुम लोग भी बोलो, मैं भी बोलूँगा, हम लोग भी बोल रहे हैं, तो वो चीज़ रहेगा थोड़ा सा सही, ठीक है। तो चलो, हैकाथॉन भैया ने मतलब काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्या करते हैं रियल वर्ल्ड। तो अब आता है कि मतलब फर्स्ट ईयर क्यों करे और मोटिवेशन और एक्सपीरियंस, ठीक है। लेकिन अब यह है कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बनाएं क्या, बेसिकली कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो देखो, प्रॉब्लम की कमी नहीं है दुनिया भर में, अपने अगल बगल देखो 10 प्रॉब्लम है, 1000 प्रॉब्लम है, तुम उस एक छोटे से प्रॉब्लम को लेके सॉल्व कर दोगे, वो भी एक तुम्हारा प्रोटोटाइप या कुछ भी कर दो, तो एक हैकाथॉन का पार्ट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर ही बनाना, जैसे जोमेटो, ठीक है। जोमेटो ने क्या किया, कुछ नहीं किया, उसने देखा प्रॉब्लम क्या है, डिलीवरी वाला। हर एक रेस्टोरेंट अपना डिलीवरी सिस्टम खोल रहा था, ठीक है, चार्जेस ले रहा था, खाना दे रहा था। हर, मान लो एक एरिया में, जैसे क्रॉसिंग की मैं बात करूं, क्रॉसिंग में यहाँ पे 100 से ज्यादा रेस्टोरेंट है, तो सबके अपने अपने डिलीवरी बॉय लगे रहते थे, ठीक है, और सब कोई अपना अपना डिलीवर करते थे। तो तुमको अगर एक रेस्टोरेंट से मंगाना है, उसका डिलीवरी वाला नंबर होना चाहिए, दूसरे से मंगाना दूसरे का नंबर होना चाहिए, तीसरे का मंगाना तीसरे से नंबर होना चाहिए। तो जोमेटो ने क्या किया, क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाए जहाँ पे सारे जितने रेस्टोरेंट्स हैं सब एक जगह आ जाएं, मेन्यू आ जाए, उनका सब कुछ आ जाए, बस तुमको क्या करना है, ऑर्डर करना है, उनके प्राइसिंग दिखा रहे हैं, ऑर्डर करना है, और उन तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो किसको कॉल कर रहे हो, क्या चीज़ है, वो उनकी जिम्मेदारी है, जोमेटो की जिम्मेदारी है कि वो अपना एक डिलीवरी बॉय भेजे वहाँ पे, वो भी, और वहाँ से तुमको खाना ला के दे। तो उन्होंने बस एक प्लेटफॉर्म बना दिया, ये प्रॉब्लम देखा कि ये प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, उन्होंने कर दिया। सेम चीज़ स्विगी ने किया। तो स्विगी और जोमेटो में अंतर कहाँ से आया, उन्होंने आपस में देखा कि सेम, तो अब बात आती है कि एक प्रॉब्लम जब सॉल्व हो चुका है तो सेम दोबारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब क्या बनता है। तो स्विगी ने क्या किया, स्विगी ने देखा कि जोमेटो मेनली रेस्टोरेंट को टारगेट कर रहा है, खाने को, फूड उनको कर रहा है, तो स्विगी ने क्या किया, छोटे छोटे चीजें उठा लिया, केक्स, पहले जोमेटो पे केक्स होते नहीं थे, केक्स, छोटी छोटी चीजें जो छोटी छोटी खाने वाली चीजें होती हैं, स्नैक्स टाइप कह लो, स्विगी ने वहां से स्टार्ट किया। पेप्सी मंगाना हो, पिज्जा और ये सब ज्यादातर इससे स्टार्ट किया, और ऑफर्स अच्छे अच्छे ला दिया, तो वो उनसे अच्छा बढ़ गया। तो फिर स्विगी पे लोग चले गए कि स्विगी लेते हैं, जोमेटो नहीं लेते हैं। तो हर एक प्रोडक्ट दूसरे से अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो एक फीचर भी ऐड कर दिया, मान लो एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तुमने एक नया फीचर उठाया, उसमें डाल दिया, तुम्हारा नया प्रोडक्ट बन गया। कुछ नहीं होता है, बस यही करना ही होता है। yes. थोड़ा सा प्रोडक्ट से पीछे लाइक अच्छा एक्सप्लेनेशन था, एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ समझना। बट एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम लोग सब अलग अलग काम करते हैं, ठीक है, दिन भर में। कुछ लोग डिज़ाइनिंग करेंगे, कुछ लोग कोडिंग करते हैं, कुछ लोग AC2 और ये सब चीज़ें, फिर अलग अलग चीज़ें करते हैं, ठीक है। ऑफन ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है, यार काश ये ऐसे हो सकता तो कितना ईजी हो जाता, एंड हम उस चीज़ को सर्च करते हैं। जैसे यूजुअली ऐसा होता है कि मेरे को मान लो एक PNG इमेज को PDF में कन्वर्ट करना है, या उसके ऊपर OCR करना है, तो समथिंग ऐसी चीज़ें, ठीक है। अब ऐसी चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं मिल जाएं, हो सकता है ना भी मिलें, ठीक है। वो आपका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन सकता है, उसको उठाओ, उसको बनाओ। एग्जैक्टली। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स
क्योंकि हैकाथॉन में 2 क्वेश्चन सबसे मेन आते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। नंबर 1 इज हमको सर सी आती है, हमको C++ आती है और कुछ नहीं आता, हम क्या बनाएं, हम कैसे पार्टिसिपेट करें। दूसरी चीज़, हम बनाएं क्या, आइडियाज़ की, मतलब वो आइडियाज़ का ऐसा लगता है जैसे फेमाइन आ गया, आइडियाज़ मिल नहीं रहे, बनाएं क्या। क्योंकि हर एक को बनाना है कि यार कुछ एकदम जोमेटो सा, कुछ एकदम गूगल सा बना के रख दें हैकाथॉन के अंदर, वैसी चीज़ें नहीं होती हैं। छोटे लेवल से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, इस पे एक और क्वेश्चन, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या लगता है कौन सा स्किल इंपॉर्टेंट है? एनीवन, कोई भी, मतलब टाइप कर दो, अनम्यूट करके बोल दो। प्रॉब्लम को एनालाइज करना और उसको एक सॉल्यूशन लाना। गुड। और कोई? इनोवेशन, थिंकिंग, ये आंसर, कैसे सोचते हैं। ठीक है। प्रेजेंटेशन, गुड आंसर। और कमॉन कमॉन, इसका आंसर सबको देना है, सबको जो एक्टिव है यहाँ पे। इनोवेशन, आइडियाज, आइडियाज स्किल नहीं है, Okay. स्किल इनोवेशन चलेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, चलेगा। टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, गुड। और टेक्निकल स्किल, किसी को लगता है कोई टेक्निकल स्किल इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल? अच्छा, हाँ, अच्छा, मैंने अभी देखा हमारे साथ देवराज भैया भी आ गए हैं। देवराज भैया, आप बताइए, आपको क्या लगता है कौन सा स्किल इंपॉर्टेंट है और टेकिंग पार्ट इन हैकाथॉन? भैया म्यूट हो, आप म्यूट हो। सो व्हाट आई बेसिकली इज कि तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ज्यादा जरूरी होता है, सबसे ज्यादा जरूरी। हाउ यू कैन, सामने वाले से तुम कनेक्ट कर पाओगे उसको लेके या नहीं कर पाओगे। इफ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, मतलब कि सिर्फ वो तुम्हें लग रही होगी, बट जनरली यू हैव टू टेक समथिंग व्हिच इज वेरी जनरल, जिससे लोग कनेक्ट कर पाए। डोमेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा। राइट। तो अभी तक जितने भी आंसर्स आए, ठीक है, उनको मैंने सबको चैट में डाला है, बाकी लोग ने भी डाला है, मैंने भी 2 ऑप्शन जो नहीं थे चैट में वो डाल दिए। तो इन सबको देख के वी गॉट टू नो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टू टेक पार्ट इन हैकाथॉन इज हैविंग अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन माइंड, है ना, एंड उसको सॉल्व करने का एक अंदर वो होना चाहिए, जिस्ट होना चाहिए, एक एंथुसियाज्म होना चाहिए कि आई कैन सॉल्व दिस, एक दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो सकती है। बस ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। टीम प्लेयर, और आई थिंक किसी ने, अच्छा, सत्यार्थ ने लिखा टीम प्लेयर, दिस इज अगेन अनदर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इन अ हैकाथॉन। आपके पास, आप टीम प्लेयर होने चाहिए। मेरे पास कई ऐसे कॉल्स आते हैं, आई थिंक हम सबके पास आए होंगे, सत्यार्थ, देवराज भैया, कि सर कैन आई, मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन पसंद नहीं है, कैन आई टेक पार्ट इन हैकाथॉन अलोन। तो पहली चीज़, इस बार ये चीज़ नहीं सोचनी है, बहुत आया था। ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचनी कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं अकेले पार्टिसिपेट करूँ। हैकाथॉन का बेनिफिट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप टीम में पार्टिसिपेट नहीं करते हो। टीम पार्टिसिपेशन इज मस्ट। जिससे बात नहीं होती है उससे बात करो, इससे आपको नए दोस्त मिलेंगे, नया इंटरेक्शन का मौका ही मिलेगा। एंड मतलब ट्राई टू फाइंड अ टीम जहां तुम सबसे ज्यादा स्टूपिड हो। यस, मतलब उसमें तुम नो मैटर वेदर यू विन और नॉट, बट इन लर्निंग थिंग्स और लर्निंग न्यू स्किल्स यू विल सर्टेनली अ विनर, मतलब जो तुम्हें आगे हेल्प करेगी। एग्जैक्टली, राइट। Pawan, you want to add something to this? Pawan, Adya, anyone from core team? हाँ भैया, मतलब बेसिकली एक वही चाहिए, एक इच्छा चाहिए कुछ करने की, बस इतना काफी है मेरे हिसाब से। तो उतना में ही कूद जाओ, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आपके कहे हुए उतने उतने इंपॉर्टेंट है, बट मेरे को ऐसा लगता है इच्छा होनी चाहिए कुछ करने की, उतने में ही हो जाएगा। कुछ में नहीं हो जाएगा। सीरियसली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगर सत्यार्थ स्टैट शेयर करेगा तो इन हैकनोवेट 1.2 वी हैव मेनी टीम्स, इन हैकनोवेट 2.0 वी हैव मेनी टीम्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर जिन्होंने बेसिक सी का यूज़ किया, बेसिक C++ का यूज़ किया, बहुत वेबसाइट बनाई, कुछ छोटा सा प्रोग्राम बनाया। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें आती कि यार हम जीतेंगे कैसे। ठीक है, आप नहीं जीत पाओगे, हो सकता है आप जीत जाओ, सकता है नहीं जीत जाओ, 50-50 होता है हमेशा, विनिंग लूजिंग। ठीक है, दैट्स कूल। नहीं, इस बार फर्स्ट ईयर का अलग से रखा होगा भैया। इस बार यहाँ पे फर्स्ट ईयर नहीं होगा ना, सेकंड ईयर जीतेगा। इस बार फर्स्ट ईयर जीतेगा मतलब। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग सेकंड ईयर के हैं? एक बार चैट में +1 या कुछ भी लिख दो, यस नो। यार फर्स्ट ईयर वाले से पूछो। नहीं, फर्स्ट ईयर नहीं है यहाँ पे, आई होप नहीं होंगे, बहुत नहीं सर, है फर्स्ट ईयर भी है। First year। अभी सेकंड ईयर वाले डालो, +1 यार सेकंड ईयर वाले बहुत है, बहुत, ऑलमोस्ट सारे ही, लगभग 50% आप मान सकते हो सेकंड ईयर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सेकंड ईयर वाले अब आ गए हैं, तो फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं किया होगा, आई नो, मतलब बेसिक तुमने पढ़ाई की होगी, सी पढ़ा होगा, किसी ने कोई हीरो बना होगा तो HTML CSS कर लिया होगा, जावास्क्रिप्ट कर लिया होगा।
तो बहुत अब बड़े हीरो हो गए तो साइंस डे पे बहुत मचाने की कोशिश किए होगे। अब वो चीज तुम्हारी स्टार्ट होती है कि अब यहाँ पे सीखने की। देखो पहली चीज आती है कि तुमको कुछ नहीं आता है, ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ नहीं आता है। तुम कोई चीज स्टार्ट करोगे सीखना, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, मान लो ब्लॉकचेन, मतलब मैं अपना डोमेन एक लेता हूँ, ब्लॉकचेन तुमको नहीं आता, आइडिया भी नहीं है कि ब्लॉकचेन होता क्या है, ठीक है, तुम सोचो कि मुझको सीखना है, तो तुम उसका मुहूर्त निकालते हो, यार नेक्स्ट मंथ सीखेंगे, यार जब थर्ड ईयर में चले जाएंगे तब सीखेंगे, या नेक्स्ट मंथ या 6 महीने बाद सीखेंगे, ठीक है, ऐसे सोच के तुम करते हो और टालते जाते हो। मैं कहता हूँ पार्टिसिपेट कर लो हैकाथॉन में और बस ब्लॉकचेन का वो कर लो, क्योंकि 3 दिन का टाइम मिलेगा, पहले 1 हफ्ते थोड़ी सी तैयारी कर लोगे, मुश्किल से 7 दिन समझ लो, तुम 4 दिन में इतना पढ़ लोगे ना कोई भी टेक्नोलॉजी। देवराज भैया कहते हैं कि कोडिंग सीखने में, मतलब किसी भी नए लैंग्वेज को सीखने के लिए 1 रात काफी है, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि तुमको नया लैंग्वेज सीखने में टाइम नहीं लगेगा, जो सीखने में टाइम लगेगा कोई भी टेक्नोलॉजी और ऐसी, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा कि कहाँ क्या भिड़ाना है, बाकी तुम्हारे सारे लॉजिक्स होते हैं। तो स्टार्ट करो, मतलब 1 हफ्ते में बहुत उतना सीख लोगे जो तुम 6 महीने में नहीं सीख पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितना हैकाथॉन में सीखोगे उतना तुम निकालते रहोगे, मुहूर्त निकालोगे कि मैं डेली 1 घंटा दूंगा, 1 घंटा दूंगा, 1 घंटा दूंगा, नहीं हो पाता है। स्टार्ट करो, हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर वाले स्पेशली तुम लोग से बस ये कहूंगा कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि थर्ड ईयर में जाके मचा देंगे, फाइनल ईयर में जाके मचा देंगे, कुछ नहीं मचेगा, जो मचेगा अभी मचेगा। तो अभी ये हैकाथॉन है बेसिकली इसीलिए कि अभी से स्टार्ट करो, जितना तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, जितने हैकाथॉन्स, मैं ये नहीं कर रहा हूँ हैकनोवेट में ही करो, दुनिया भर में हजारों हैकाथॉन्स हो रही हैं, डेफोलियो खोलो, MLH के जाके देखो, डे पोस्ट खोलो, बहुत सारे हैकाथॉन्स मिलेंगे और मस्त पार्टिसिपेट करो, कुछ भी नया सीखो, ये मत करो कि तुमको जो आता है वही सीखो। देखो मान लो फॉर एग्जांपल तुमको आता है वेबसाइट बनाने आता है, तो तुम वेबसाइट ही बनाते रह जाओगे, अगर तुम वही वो चीज आती है, तुमने हैकाथॉन में भी वही अप्लाई किया, फिर नेक्स्ट हैकाथॉन में भी अप्लाई किया, क्या सीखा तुमने? कुछ नहीं सीखा, जो आ रहा था उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हो बस। हैकाथॉन का मेन रीजन ये है, मतलब मोटिवेशन ये है कि कुछ नया सीखो, नया स्किल सीखो। तो जो नहीं आता है, ऐप डेवलपमेंट नहीं आता है, मैं कहो कि मैं इसमें ऐप बनाऊंगा और सीखने लगो, तो बस हो जाएगा। यूट्यूब है, काफी रिसोर्सेज हैं, काफी हो जाएंगे। तो ऐसे हाँ भैया। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब अब मतलब इससे पता है फायदा क्या होता है हैकाथॉन में, आप एक में लोगे एंड इफ यू मेक अ कूल प्रोजेक्ट, आप उसे मल्टीपल हैकाथॉन्स में ले जाके उसको इनकैश कर सकते हो एंड वहाँ पे जाके आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे हम लोग ने भी आई थिंक किया हुआ सत्यार्थ, हम लोग ने SIH का प्रोजेक्ट बनाया था, वी हैव टेकन द सेम प्रोजेक्ट टू IPAC हैकाथॉन, वहाँ पे भी जीते हम, SIH के जो इंटरनल हैकाथॉन हुआ था वहाँ पे भी जीते। तो एक और वी हैव सीन टीम्स जो एक ही प्रोजेक्ट को डेफोलियो के अलग अलग हैकाथॉन्स में ले जाके और इम्प्रूवमेंट्स करते रहते हैं, फीचर्स ऐड करके। इम्प्रूवमेंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको हर जगह आप जाओगे आपको फीडबैक मिलता है एंड अब उसको इम्प्रूव करना रहेगा। अब बताओ फर्स्ट ईयर वाले कितने हैं, अब वो उनके लिए +1 करो, +1 रेज मत, +1 करो, हाथ में रेज करो, चैट में +1 करो जितने फर्स्ट ईयर वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब काफी है यहाँ पे भी, मतलब 20 लेके चल सकते हैं। हाँ, मतलब 10 15 20 हैं, ठीक है। तो तुम लोग के लिए स्पेशली कि मतलब तुम लोग ये सोचते हो कि यार फर्स्ट ईयर में है, कुछ नहीं आता है बनाने, और हम कैसे जीतेंगे जबकि फाइनल ईयर वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे बड़ा इशू तुम लोग का ये रहता है, ठीक है। मैं कहता हूँ स्टार्ट करो, बनाओ, कुछ नहीं आता है कुछ सीख के बनाओ, कुछ देख के बनाओ, ठीक है। और इस बार स्पेशल ट्रैक, मतलब मेरे तरफ से समझ लो हाँ ही है, एक फ्रेशर के लिए फ्रेशर ट्रैक रहेगा, जिसमें अगर सारे फर्स्ट ईयर वाले, मतलब टीम मैक्सिमम टीम है, हैकनोवेट के बारे में अभी चलते हैं उस पे लेके, तो उनके अगर तुम्हारी टीम है तो तुम्हारा खुद में कंपटीशन रहेगा, मतलब फर्स्ट ईयर वालों में ही कंपटीशन रहेगा उस ट्रैक का, ठीक है। और उसमें से एक विनर पक्का रहेगा। तो सोच लो, मतलब मैंने पूरा हैकाथॉन अलग रखा और एक ट्रैक फर्स्ट ईयर का स्पेशली रखा, जिसको मैं फ्रेशर ट्रैक या कुछ भी कह लेंगे, फ्रेशर ट्रैक सबसे सही रहेगा। तो तुम लोग के लिए प्राइस मतलब अलग से रहेगा। तो ये एक तुम्हारे लिए एक ऑफर, तो अब ये मोटिवेशन हमको लगता है काफी है तुम लोग को पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसीलिए मैंने पूछा वाई फर्स्ट ईयर, क्योंकि यहाँ से एक मोटिवेशन मिलेगा पार्टिसिपेट करने का, और तुम अपने रिज्यूमे साफ साफ लिखोगे यार पार्टिसिपेटेड इन हैकाथॉन, मतलब होता है, और जीत गए तो बवाल मचाओगे फर्स्ट ईयर में ही। एंड ये चीज़ तो देवराज भैया आई थिंक सबसे बेस्ट वे में बता पाएंगे कि व्हाई सच प्रोजेक्ट्स व्हिच वी मेक इन हैकाथॉन वो ज़्यादा वेटेज डालते हैं रेज्यूमे के अंदर, राइट भैया? हाँ यार, मतलब जो भी तुम्हारे फाइनल राउंड्स होते हैं ना, बेसिकली तुम डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह वो
कर लिया, उसके बाद तुम्हारा प्रोजेक्ट्स ही पूछते हैं लाइक व्हाट वर द प्रॉब्लम, कि तुमने अगर कोई प्रोजेक्ट किया तो क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे तुमने उनको एनकाउंटर किया। और जितना तुम्हारे कूल प्रोजेक्ट्स होते जाते हैं ना, तुम उस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो। इट्स नॉट एट वेरी स्टार्ट ऑफ द जर्नी, मतलब आई अभी मैं मतलब कुछ टाइम में SD2 रोल के लिए वो हो जाऊंगा, तो मैं जो भी इंटरव्यूज दे रहा हूँ उस तक में वो चीजें पूछी जाती है, मतलब यार कि तुम्हारे कॉलेज के टाइम पे क्या रहा, क्या किया, वो द एंटायर जर्नी। तो यार तुम्हारे प्रोजेक्ट्स हमेशा हेल्प करेंगे तुम्हें। एग्जैक्टली। एंड हम सबका भी एक्सपीरियंस यही है। तो अभी तक हम वी हैव कवर्ड कि हैकाथॉन क्या होता है, व्हाई शुड बी टेक पार्ट, एंड क्या उसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन या कोई स्किल की ज़रूरत है लेने के लिए। तो जैसा पवन ने समराइज किया, सिर्फ तरुण सर एक चैट में आया है enthusiasm मैसेज होना आपके चाहिए। लिए। हाँ, Q&A ले लेते हैं अभी। So first question we got from Yuvraj is how to find a team when we are unable to interact. Okay. ठीक है। सो इस चीज़ को सो द फर्स्ट थिंग जो हैकाथॉन वाले मतलब जो भी ऑर्गेनाइजिंग टीम होती है वो फैसिलिटेट करती है इस चीज़ को। तो हम यूजुअली हमारे पास एक चैनल होता है जिसमें आप लोग जा सकते हो, जहाँ अलग अलग लोग अपने स्किल डालते हैं, आप भी अपने स्किल डाल सकते हो उसके अंदर, एंड देन रैंडम पीपल जस्ट टीम अप। ठीक है। अनदर थिंग जो सबसे ये इम्पोर्टेंट, भैया अच्छा सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें इसमें अनएबल टू इंटरेक्ट वाले मैं इसका जवाब जवाब देना पसंद करूंगा थोड़ा सा, हाँ हाँ कि श्योर। इसमें जिसमें हैकिंग वेट 1 में भी यही हुआ था कि मैं किसी को जानता ही नहीं था, मतलब सीनियर से कोई इंटरेक्शन नहीं था। मैं देवराज भैया से बेरली एक बार मिला था, तरुण भैया को मैं जानता भी नहीं था उस टाइम पे। एक मिनट दीजिएगा इसके। तो हुआ ये था, उस टाइम पे मेरे को भी ये लगा था कि कोई यार कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। तो कुछ नहीं, आप अपनी क्लास के किसी एक दो बंदे से तो बात करते ही होगे ना, किसी से तो जान पहचान होगी आपको, तो उन्हीं के साथ टीम बना लो, स्टार्ट करो, जाके एक्सपीरियंस करो। वहां पे 4 लोग जो दिखेंगे उनसे पूछना। वहां पे मुझे देवराज भैया दिख गए थे, मैं उनका सर खाया पूरे टाइम, बताइए ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। जब ये पूछ के गए हैं, मेंटर ये बता के गया है, ये होता क्या है, आधी चीजें पता ही नहीं है होता क्या है, बस बता के चले गए हैं। तो वहीं से स्टार्ट करो। इंटरेक्ट नहीं करते हो तो इसको, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। सोल्यूशन ये है कि अपने क्लासमेट से बनाइए टीम, और बस वहां से स्टार्ट करिए। धीरे धीरे इंटरेक्शन बढ़ेगा, आप सीनियर्स को जानेंगे, आप उन लोगों से मिलेंगे जो रिलेटेड होंगे आपकी फील्ड से, और आपको और ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ेगा, नतीजा आपका लेवल अच्छा होता जाएगा। एंड यार एक बात बताओ, जब बंक मारने जाते हो तो दोस्तों को बुलाना पड़ता है कि अपने आप आ जाते हैं ना, तो उन्हीं को पकड़ो, उन्हीं को कहो कि यार जब बंक मारने साथ में चलता है तो हैकाथॉन भी साथ में चल मेरे। तुम्हारा को नुकसान थोड़ी है उस चीज़ में। मतलब इंटरेक्शन में जानता हूँ वो प्रॉब्लम आती है इनिशियली, सब मोस्ट ऑफ अस फेस दैट, बट दिस इज द पर्पस ऑफ हैकाथॉन, या दिस इज द पर्पस ऑफ टीम इवेंट्स, कि आपको इंटरेक्शन का मौका मिलता है उन लोगों से जिनको आप जानते नहीं हो। ट्राई करो टीम उन्हीं के साथ बनाओ जिनको जानते नहीं हो, बिकॉज यू गॉट टू नो देम, उनको जानने का मौका मिलेगा। एंड जैसा देवराज भैया ने कहा, ऑलवेज हमेशा अपने ज़्यादा स्किल वाले को टीम में लो, सो दैट आपको उनसे सीखने का मौका मिले। ऐसा ना हो कि पूरा बोझ आपके ऊपर आ जाए, पूरी जिम्मेदारी यू आर कैरिंग। अच्छा, एनीवन वांट टू ऐड मोर पॉइंट्स टू इट? एनीवन फ्रॉम द कोर स्पीकर्स, ऑडियंस, कोई भी ऐड करो, अपने एक्सपीरियंसेस बताओ ताकि युवराज की हेल्प करो। ओके, सो युवराज, लाइक जैसे तुमने बोला कि यू डोंट हैव इंटरेक्शन, बिकॉज आई गेट इट, तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो, तुम्हारी किसी से ज़्यादा बात भी नहीं होती होगी। बट DSC वाले ग्रुप पे देखा ना, बहुत सारे बच्चे ऐड हैं तुम्हारे ईयर के ही। डिस्कॉर्ड सर्वर पे बहुत सारे लोग हैं, किसी भी एक को पकड़ो। एंड बाकी आई गेस कल से तुम लोग के क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, क्लास में लोगों से मिलोगे, किसी ना किसी के बगल में जाके बैठोगे, उससे बात करोगे, पकड़ लो उसको कि चलो भाई साथ में चलेंगे। बिल्कुल जीरो के भी जाओगे ना वहाँ पे, तो जब सोचोगे कि हाँ मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो एक बार शुरू करोगे तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हाथ पैर जरूर मारोगे। एंड वही हाथ पैर मारना जरूरी होता है किसी भी हैकाथॉन में। अनदर थिंग इज, इस बार तो शायद हैकाथॉन ऑफलाइन हो रहा है, नहीं वाला हैकाथॉन, या मतलब जब भी मतलब हैकाथॉन का वैसे भी क्या होता है, जब आप देखते हो ना कि आपके आसपास और लोग काम कर रहे हैं, व्हेन यू गॉट टू नो कि यार मेरे क्लासमेट्स मेरे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी वो मोटिवेशन अपने आप आती है। एंड युवराज, ट्राई टू फाइंड ऑल और पीपल जिनको भी ये डाउट है सेम। तो घूम फिर के बात वही आ गई, फर्स्ट ईयर वालों के लिए खासकर इच्छा की बात है, बस इच्छा रखो करने की। अच्छा, अभय का एक क्वेश्चन है, विल वी गेट द टॉपिक ऑन द स्पॉट? ओके, सो अभय, हैकाथॉन के अंदर इट्स नॉट लाइक कि आपको वहाँ जाना है, प्रिपेयर होकर विद योर टूल्स, एंड वहाँ आपको बताया जाएगा क्या करना है, एंड यू आर डूइंग दैट। हैकाथॉन के अंदर आपके पास थीम्स होते हैं, जैसे कि इस बार हमारे पास भी हैं, या हर एक हैकाथॉन में आपको थीम्स मिलेंगे। इट कैन बी रिन्यूएबल एनर्जी, इट कैन बी एजुकेशन, फिनटेक, मेडिकल साइंस, एनीथिंग रिलेवेंट टू द ऑर्गेनाइजिंग टीम। ठीक है।
एंड उन थीम्स के ऊपर आपको अपना आइडिया इम्प्लीमेंट करके दिखाना होता है। हाँ, पहले से लेके मत जाना इम्प्लीमेंट करके, वरना वहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। वहाँ जाके इम्प्लीमेंट करना होता है, बट टॉपिक आप पहले से सोच के जा सकते हो कि हाँ मैं क्या बनाने वाला हूँ, वो पूरे प्लान करके जा सकते हो कि मैं कैसे बनाने वाला हूँ, क्या बनाने वाला हूँ। बना के नहीं लेके जाना सर, डिश के रॉ मटेरियल्स लेके जाने हैं, रेसिपी लेके जानी है, कुक वहीं जाके करना है, ठीक है। इज इट गोइंग टू बी ऑनलाइन या ऑफलाइन? ओके, अब हैकनोवेट के ऊपर बिकॉज आई थिंक मोस्टली, हाँ हर्षित यू वांट टू आस्क समथिंग? जैसे हमें अभी प्रॉपर एक वेब ऐप बनाना नहीं आता ना, साइट प्रॉपर डिजाइन करने आता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे? हाँ, तो फर्स्टली इफ़ यू थिंक कि मेरे को एक वेबसाइट बनानी है, सही है, तो तुमको बेसिक तो पता है कि वेबसाइट बनती कैसे है। नहीं पता है तो यू कैन डिस्कस विद मी, यू कैन डिस्कस विद एनी कोर टीम मेंबर, देवराज भैया, सत्यार्थ, एनीवन, ठीक है। यस अब जब तुमको स्किल मिल गया, तुमको एक नाम मिल गया, यू गॉट टू नो कि यार बैकएंड जेंगो से होता है, आई गॉट अ नेम। अब उस नाम को तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर सकता हूँ, आई कैन फाइंड आउट कि जेंगो कैसे काम करता है, आई कैन फाइंड आउट कि जेंगो से कैसे ऐप बनता है, तो वो सब चीज़ें हो जाएंगी। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट जो सबको डेवलप करनी है इधर में, दैट इज गूगलिंग। गूगलिंग की हैबिट सब लोग डेवलप करो। इफ़ यू गॉट अ कीवर्ड, डोंट वेट कि समवन कोई सेशन लेगा, मेरे को उस कीवर्ड का मतलब समझाएगा, मेरे को उसको यूज़ करना समझाएगा, नहीं। इफ़ यू गॉट अ कीवर्ड, गो टू गूगल, गो टू यूट्यूब एंड ढूंढ डालो उसके ऊपर। एंड वही आपको भी करना है हर्षित। इफ़ यू गॉट आइडिया इन माइंड कि अगर कोई वेबसाइट बनने का प्लान है, यू नो HTML, यू नो CSS, यू नो जावास्क्रिप्ट से बनती है, यस ठीक है। अब उसमें गूगल करना शुरू करो कि यार मेरे को ऊपर नेविगेशन बार देना है, कैसे बनाऊँ, गूगल करो, उसका कोड मिल जाएगा, बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अब आप चाहते हो बटन दबाने पे मोडाल खुल जाए, गूगल करो कैसे खुलेगा, जावास्क्रिप्ट से होगा, कैसे होगा, थैंक राइट। यू। ओके सर। हर्षित तुम्हारा मतलब क्या मतलब सीखना चाहते हो, मतलब किस में इंटरेस्ट है? मोबाइल डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ML, ब्लॉकचेन, क्लाउड, कुछ भी? ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही सर। ठीक है, तो मैंने एक चैट में लिंक डाला है, roadmap.sh। एक बार जितने लोग यहाँ पे मीट में हैं, मतलब टाइम मिले इस मीट के बाद या फिर कुछ भी, इस लिंक को बुक मार्क कर लो। पहली चीज़ ये बुक मार्क कर लो, ठीक है। ये 4 साल तुम्हारे साथ ये link रहेंगे, अच्छा 4 साल में 4 साल बाद भी रहेंगे, ठीक है। और एक बार जिसमें भी इंटरेस्ट हो, मतलब इसमें सब नहीं है, मैक्सिमम नहीं है, लेकिन फ्रंट एंड कुछ बैक एंड चीज़ें, है। हाँ फ्रंट एंड बैक एंड है तुम्हारा, तो वो लैंग्वेज सीखने का, तो एक पूरा प्रॉपर रोड मैप बनाया है। हम लोग पूछते हैं ना, यूट्यूबर्स के पास जाते हैं, सर्च करते हैं रोड मैप फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फॉर वेब डेवलपमेंट। मत करो सर्च, तुम सीधे यहाँ पे जाओ, जो जो नाम दिख रहा है, जो जो बताया है कि HTML, तो HTML पढ़ना शुरू कर दो। खुद अपना रोड मैप बनाओ खुद का, कि हमको ये सीखना है, ये सीखना है, ये सीखना है। जैसे तरुण मैंने बताया है कि तुमको कोई प्रॉपर कोई भी उठा लो जो पसंद है, और उसके बाद उसको कंटिन्यू कर दो, तो यहाँ से तुम प्रॉपर कोई भी तुमको टेक्नोलॉजी सीखनी सीख सकते हो। मतलब एक तरह का रोड मैप मिल जाता है, ठीक है। और अगर तुम सोच रहे हो कि फर्स्ट ईयर में हमको तो कुछ आता नहीं है, तो मैं क्या बनाऊंगा, तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, नहीं आता है, ठीक है, तो तुम ये सोच रहे होगे ना कि मैं फाइनल ईयर में प्लेसमेंट लेना है मेरे को, तो उसके लिए तैयारी करोगे ना, तो कब करोगे? फाइनल ईयर में जाके? नहीं, वो तैयारी आज से ही होगी। तो वो जो तैयारी कल करने को सोच रहे हो, वो आज से ही करो ना। कल अगर सोच रहे हो तुम HTML CSS सीखने को, कल सोच रहे हो कि मैं अपने रेज्यूमे में डालूंगा कि यार आई एम अ बैकएंड डेवलपर, तो वो आज डाल लो ना, आज सीखो, कल डाल लेना। तो उसके लिए स्टार्ट, मतलब इंतजार मत करो कि यार जब कॉलेज खुलेगा, कॉलेज वाले बताएंगे, मेरा एग्जाम हो जाएगा, मैं सेकेंड ईयर में आ जाऊंगा, तो नहीं, साथ में लेके चलो। साथ में जब चीजें लेके चलोगे ना, काफी तुम्हारा इम्प्रूवमेंट होगा। तुम देखोगे कि मतलब अचानक से जो मिलेगा ना, वो नहीं उतना मजा देगा जो तुमको, जो मेहनत कर करके एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए जाओगे, वो सबसे उसमें ज्यादा मजा है। Yes. तो वो चीज है। Okay. हाँ भैया। हर्षद, आपका डाउट सॉल्व हुआ? You got an answer? I think यस satisfied. सर, यस सर, थैंक यू सर सर। एक डाउट मुकुल का भी आया था, मुकुल से एक बार, मुकुल कुछ डाउट था, पूछो। मुकुल, आप पूछना चाहते थे कुछ? हाँ, वो यही था कि मतलब अभी तो जैसे सब बिल्कुल ज़ीरो पे खड़े हैं, अगर कोई बस नाम ही सुना है लैंग्वेज का। वैसे मैंने पढ़ी है, मैं लूप्स तक गया हूँ, उससे ज़्यादा मैं अभी आगे बढ़ा नहीं। C++ में, जावा में भी ठीक है। लूप्स तक बढ़ा था, बट उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उससे क्या ही बनेगा। अब पता नहीं, बहुत अच्छा बन भी सकता होगा, बट लूप से क्या बनेगा? अब पहली बार, या फिर ये अलाउड होता है कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट, आपके पास है कोई टास्क है, तो आप गूगल कर करके सब कुछ कर सकते हो? बिल्कुल मुकुल, कर सकते तुमने हो। मुझको DM किया था ना, तुम ही थे ना जो पूछ रहे थे कि मुझको लूप तक आता है। और हाँ, मैं ही तो था। देखो, मैंने तुमको क्या बताया था कि देखो, ये सब जो लैंग्वेजेस हैं, वो तुम्हारे एक तरह समझ लो कि कोडिंग लैंग्वेजेस हैं। मतलब इनसे तुम क्या बनाओगे? अब ये आता है, तो C से C++ से कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हो, ठीक है।
तुमको थोड़ा डेवलपमेंट में आना पड़ेगा। जो सी और C+ सीखा जाता है वो डेटा स्ट्रक्चर के लिए सीखा जाता है, तुम्हारे लॉजिक बिल्डिंग के लिए सीखा जाता है कि तुम कैसे तुम सोच पा रहे हो, ठीक है। अब तुमको आना है कुछ डेवलपमेंट में, कुछ बनाने के लिए, कुछ मतलब एक वेबसाइट खड़ी करनी है, कुछ तुमको एक मशीन लर्निंग मॉडल लिखना है, तुमको एक स्मार्ट बल्ब बनाना है, स्मार्ट प्लग बनाना है, कुछ भी, मतलब मैं सॉफ्टवेयर की नहीं बात कर रहा हूँ, हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ। कुछ भी बन सकता है, यस। तुम यार कोई भी ले लो ना यार, एलेक्सा क्या है, एलेक्सा तुम्हारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों काम करता है, ठीक है, उसमें केवल सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर भी है, ठीक है। स्मार्ट बल्ब है, वो उसमें हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, तो वो चीजें हैं। तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ जरूरी नहीं होती है, हार्डवेयर रिलेटेड भी होती है कुछ चीजें। तो तुम थोड़ा सा देखो कि तुमको इंटरेस्ट क्या है तुम्हारा, मान लो बस थोड़ा एक्सप्लोर करो कि तुमको वेबसाइट बनाना पसंद है। मतलब मेनली फर्स्ट ईयर में लोगों का टारगेट रहता है वेब डेवलपमेंट, थोड़ा सा ये रहता है, मतलब कि थोड़ा इजी पड़ता है और स्टार्ट अच्छा मिलता है। तो करो वो चीज़ करो कि मतलब हाउ टू मेक वेबसाइट। तो मैंने जो भी शेयर किया है लिंक, उसमें देखो फ्रंट एंड डेवलपमेंट होगा, तो रोड मैप एक बार खोलो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट देखो कि क्या क्या चीज़ें सीखने को है। अगर मैं हैकनोवेट की बात करूं तो ये 16 अक्टूबर को हो रहा है और आज है 3, 16 में से 3 गए 13, ठीक है। 13 दिन तुम्हारे पास गिन के, मतलब आज का भी हटा लो, चलो 12 दिन तुम्हारे पास गिन के हैं। 12 दिन में से अगर 10 दिन भी तुम एक एक घंटा कुछ थोड़े थोड़े पढ़ते हो तो उसमें 10 घंटे में तुम कितना मचा सकते हो। कुछ तो तुम्हारे पास आइडिया आ जाएगा कि क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, ठीक है। और फिर हैकाथॉन में जाके बनाओ। कौन मना किया है? और नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पे देखो कि मतलब क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स फॉर गूगल करना। जैसे भैया ने कहा कि गूगलिंग सबसे चीज है। पता है, हम लोग कोई भी इंजीनियर हो जाए, ठीक है, चाहे कितना 1 लाख कमा रहा हो या 20 लाख कमा रहा हो, वो गूगल करके ही पूरा कोड करता है, ठीक है। गूगल करता है, एरर मिलता है, एरर को गूगल करता है, वहां से सॉल्यूशन मिलता है, वो भी डालता है। तो ऐसे से करके इंजीनियर बनते हैं भाई। इंजीनियरिंग तुम्हारा कुछ नहीं है, बस गूगलिंग करना आना चाहिए और अपना लॉजिक तो लगाओगे ही। तो वो चीज़ है। तो गूगल करो कि मतलब हाउ टू मेक अ वेबसाइट ऐसे करके। गाइस कोई और भी अगर ये सोच रहा है कि मेरे को सी या सी मेरे को बेसिक सी आती है, उसमें भी जैसे पॉइंटर्स या लूप्स तक आता है, मैं क्या बना सकता हूँ, तो फर्स्टली हैव एन आइडिया इन माइंड। सबसे पहले ये क्लियर करो मेरे को बनाना क्या है। ये मत सोचो मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, बात तो देखेंगे, वो बनेगा नहीं बनेगा बात में देखेंगे सब। फर्स्ट डिसाइड कि मेरे को बनाना क्या है, देन उसको देखो कि वो कैसे बन सकता है, वो उसके बाद देखो कि कैसे बन सकता है, मैं बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता, वो बाद में आता है। फर्स्ट थिंग इज टू डू समथिंग, कुछ करना इंपॉर्टेंट है, वो कैसे होगा वो बाद में देखा जाएगा। जब तुम वो ले लोगे ना कि मुझे कुछ करना है, बस तुम्हारी शुरुआत वहीं से हो जाएगी। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि बहुत लोगों को फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आते हैं उनको थर्ड ईयर लग जाता है ये डिसाइड करने में कि आई हैव टू डू समथिंग। पहले 2 साल व्हाट ऑल दे डू इज क्लास करना, कैंटीन जाना, क्लास करना, कैंटीन जाना। दिस इज द नॉर्मल रूटीन ऑफलाइन क्लासेस में। फिर डिसाइड करो कि यार करना है कुछ, एग्जैक्टली वहीं से हमारी स्टार्टिंग हो जाएगी। हाँ गाइस, इसके बाद Q&A सेशन के लास्ट में लेंगे, ठीक है। अभय का लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर, वो मेरे को ये पूछना था कि जरूरी है मतलब कि फर्स्ट ईयर के बच्चे अपने कॉलेज के होने चाहिए? दूसरे कंट्री से भी ले लो भाई। ये हाँ, अब इस क्वेश्चन के लिए मैं इसे हैकाथॉन स्पेसिफिक नहीं करता हूँ। ये क्वेश्चन में डिपेंड करता है। कई हैकाथॉन्स ऐसे होते हैं जैसे SIH है, वहाँ पे यू नीड कि जो स्टूडेंट होगा, तुम्हारी टीममेट होगा, वो तुम्हारी कॉलेज का होना चाहिए। बट कुछ हैकाथॉन्स हैं, जैसे इस बार हैकनोवेट में भी वी अलाउ मल्टीपल इंटर कॉलेज टीम्स। आप किसी भी कॉलेज से बंदा उठा लो अपने साथ। इंटर कंट्री भी है भैया, दूसरे कंट्री, इंटर कॉन्टिनेंट टीम्स, कॉन्टिनेंट, ठीक है भाई, बुला लो, ठीक है। स्टूडेंट ही होना चाहिए क्या? नहीं, इस बार थोड़ा सा वो किया हमने। नहीं, देवराज भैया नहीं अलाउ है। ये मुस्कान की चमकान बता रही है कि पैसा कहाँ जाने वाला है। बता रहा हूँ ना मैं। गाइस, देवराज भैया और तरुण भैया मेंटर रहेंगे हमारे हैकाथॉन में। तरुण भैया को पता ही नहीं है, तरुण भैया को अभी तक नहीं पता है। मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी फर्स्ट ईयर वाले हैं ना, तुम जो मतलब बोलते हो कि अभी तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ इतना किया है, ये है ना मेरा एक्सक्यूज होता है, ठीक है। और इसके लिए ना तुम ही एंड तक जिम्मेदार रहते हो। और ये चीज है ना, अगर तुमने ये आज एक्सक्यूज बना लिया ना, ये तुम्हारा 4th ईयर तक कैरी करता रहेगा। तुम ऐसे ही ग्रेजुएट हो जाओगे। बहुत लोगों के मेरे पास कॉल आता है और मैं सच्ची काफी इरिटेटिंग होता है वो कि कॉलेज में बताया नहीं, कॉलेज में कुछ कराया नहीं, ऑनलाइन क्लासेस ही कर रहे थे एंड उसमें कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। तो भाई मतलब कॉलेज पे अगर तुम डिपेंड रहोगे, तुम ऐसे ही जैसे बैग उठा के हॉस्टल में आए थे ना, वैसे ही बैग उठा के वापस चले जाओगे। यू हैव टू टेक इनिशिएटिव्स, मतलब तुम्हें लेना होगा। मतलब बहुत जगह तुम्हारी बेइज्जती होगी, मतलब कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता।
तरुण और मैं रोज अपने ऑफिस में बेइज्जती कराते हैं अपनी, तुम्हें इतनी चीज नहीं पता, उतनी नहीं पता। बहुत डांट पड़ती है। एंड इट्स ऑलवेज मतलब तुम जहाँ कंफर्टेबल हो जाओगे वहां तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ चाहिए तुम्हें कि हाँ भाई कुछ हमेशा अनकंफर्टेबल अच्छा एनवायरनमेंट अच्छा सा पैकेज अचीव करना है, और भाई जो भी मतलब बंदा है बंदी है उसके घर वालों के सामने स्टैंड लेना है, तो भाई मतलब चीजों का इनिशिएटिव लेना पड़ेगा यार। मतलब ऐसे चीजें नहीं आती, एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। बिगेस्ट मोटिवेशन आप लोग के ये डीएससी के इस बार की पूरी कोर टीम है, क्योंकि ये सब सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं आप लोग के साथ के। दे हैव डिसाइडेड कि मेरे को कुछ करना है फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, एंड इसी वजह से ये लोग यहाँ पे हैं। लाइक लिटरली मैं पवन का एग्जांपल देता हूँ। पवन जब हैकनोवेट 1 के टाइम पे आया था, पवन को शायद मुश्किल से पवन किसी को जानता था एंड पवन को कोई जानता था, एंड सिंस दैट डे उसको भी आइडिया नहीं था कि कैसे चीजें होंगी कैसे नहीं होंगी। एंड उसने उस दिन स्टार्ट किया, उस दिन उसने बैठा, मतलब वो लाइक लिटरली ऑल शिट कर रहा था। मतलब उसको खुद नहीं पता था कि वो कर क्या रहा है, बट ही वाज जस्ट गोइंग फ्रॉम वन थिंग टू अदर थिंग। इनफैक्ट मतलब पहले ही पता चल गया था कि लाइक ही वोंट विन, बट ही टुक इनिशिएटिव। उसको उसमें मजा आने लगा एंड चीजों से लोगों से इंटरेक्ट हुआ एंड ही वेंट, मतलब उसने पहले ही प्लेसमेंट ड्राइव में फोड़ दिया एकदम। भैया जो बता रहे हैं ना, पता नहीं था, मतलब लिटरली क्लूलेस सिचुएशन थी। मुझे ये नहीं पता था कि साला एक्चुअली क्लाउड होता क्या है, कैसे काम कर रहा है क्लाउड। बस ये पता था हाँ क्लाउड नाम की कोई चिड़िया होती है, बट क्लाउड क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। क्वेश्चन उठ रहे थे, मेंटर आगे पूछ के गए डेटा कहाँ स्टोर करोगे, क्या करोगे। मैं बोल दिया क्लाउड, कह रहे क्लाउड में क्या करोगे, कौन सा डेटा यूजेज डेटाबेस यूज करोगे। अब मैं कह रहा हूँ डेटाबेस में भी टाइप होता है, ये तो पता ही नहीं था आज तक। तो इतनी सारी चीजें होती हैं। और भैया से मैंने इतना सर खाया था, जबकि वो वहां पे खाली क्या कहते हैं बेसिक गाइडिंग के लिए थे, लेकिन उसके बाद भी वहां पे जो लोग बैठे रहते हैं, जो आपको सपोर्ट करना के लिए बैठे हुए हैं या तैयार है थोड़ा बहुत भी गाइड करने के लिए, आपको खुद ईगरनेस दिखानी पड़ेगी कि हाँ मेरे को बताओ, मेरे को ये जानना है। आप वहां भले डम्ब रहोगे, बट 1 साल बाद 6 महीने बाद अगले हैकेथॉन में या अगले कहीं इंटर्नशिप के इंटरव्यू में या कहीं पे भी आप अपने आप को पाओगे कि आज मुझे उस दिन से कहीं ज्यादा पता है। सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती पहले कराने को राजी था। क्योंकि सबसे बड़ा हेजिटेशन यही रह जाता है कि यार मैं डम ना नजर आ जाऊं, और उसी चक्कर में लोग कुछ नहीं सीखते हैं। यार ये क्वेश्चन तो निकाल दो। सच में भाई बेइज्जती तो हर टाइम कराने के लिए रेडी हो जाओ। मतलब तरुण ने बहुत कराई है मैंने बहुत कराई है। अरे मैं खुद करा रहा हूँ भैया बोलते पोस्टमैन नहीं ढंग से यूज कर रहे हो, तो हेडर नहीं पास कर रहे सारे, क्या बोलूं। और यार मतलब सीरियसली मतलब ये बहुत कॉमन सेइंग है, सबको कही जाती है कि नो क्वेश्चन इज डम, नो डाउट इज डम। पूछना तो पड़ता ही है, यू हैव टू आस्क। जब तक पूछोगे नहीं जवाब नहीं मिलेगा, जब तक गूगल नहीं करोगे गूगल तुमको थोड़ी बता देगा कि पोस्ट रिक्वेस्ट क्या है। गूगल तो पहले खुद ही करना पड़ेगा ना, तो यू नीड टू आस्क। अच्छा, with this a brief introduction, brief discussion over hackathons, let's move on to the next section, which is what is Hacknovate 3.0। उसके बारे में पूरे रूल्स रेगुलेशंस एंड क्या है, कितना कूल है, ठीक है। तो सत्याल, लेट्स कैरी इट फॉरवर्ड। थैंक यू भैया। तो गाइस यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, ये फोटो में ये देखो टीम देख रहे हो, ये हैकनोवेट 1 की है। मतलब कुछ जन थे इसमें तरुण भैया भी होने चाहिए थे, लेकिन तरुण भैया बैकएंड में काम करके भाग गए थे पार्टिसिपेंट में, ठीक है। देखो यहाँ पे देवराज भैया भी दिख रहे हैं, कहाँ गया ये, देखो कैसे दिख रहे हैं भैया, आज देखो कैसे दिखते हैं ठीक है। तो पहला था ये ऑफलाइन था, हमारे कॉलेज में ही हुआ था, और मतलब अच्छी खासी टीम आई थी, इसमें भी 30-32 आ गई थी टीमें आराम से, उससे ज़्यादा ही थी। और जो दूसरा वाला हुआ हैकनोवेट 2.0 वो वर्चुअल हुआ था, उसमें अराउंड 64 टीम्स रजिस्टर की थी, और अटेंडेंस मतलब करीब 50 अराउंड आ गई थी, ठीक है। तो मतलब काफ़ी अच्छा गया था, मतलब सोचो मतलब जस्ट डबल हुआ था। और इस बार हमारे पास अभी खैर 10 दिन और हैं अभी हमारे पास, मतलब काफ़ी दिन है, और हमारे पास ऑलरेडी 40+ टीम्स हैं, वो भी मतलब बाहर से भी हैं, थैंक्स टू आद्या अगेन, ठीक है, बार बार बोलता हूँ। तो गाइज हैकनोवेट 3.0 ये पूरा सीरीज चला आ रहा है 3 साल से, और हर साल कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मतलब कुछ नया नया आइडियाज़। और इस बार इतना नया आइडिया, इतने मतलब सब टीम ने सोचा कि क्या क्या करा सकते हैं इस बार नया, मतलब नॉट फॉर अस, मतलब हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होता है सच, मतलब ऑर्गेनाइजर्स का कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम 1-2 पिज़्ज़ा खाने से। लेकिन उसके अलावा पूरा पार्टिसिपेंट को वो मिलता है, फ़ायदा मिलता है। और अगर तुम लोग ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ रहे हो तो सच में तुम्हारे से मतलब यार मेरा सोचो, मैं तो 3 साल से नहीं पार्टिसिपेट कर पाया, और इस बार तो प्राइज इतने हैं ना कि मन कर रहा है कि भाई पार्टिसिपेट करें। जब हमें हमारी टीम बनी कोर की,
तो हमने जब बताया ना कि इतने में, सबका मूड बदल गया, सर ऑर्गेनाइजर्स नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसे बोल रहे थे सब, क्योंकि बस प्राइज मनी की वजह से। तो इस बार हमारे पास हैकाथॉन इस बार 30 आवर्स का हैकाथॉन है, जो कि 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है सुबह 9 बजे के करीब, और 17 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। 30 आवर्स का पूरा रहेगा नॉन स्टॉप, मतलब रात में हैकाथॉन यही होता है कि रात में 12 बजे भी काम करो, 3 बजे भी काम करो, वो पूरा ऑन रहता है, ठीक है। तो हैकाथॉन इसीलिए थोड़ा टाइम बेस्ड रहता है, और उसमें मजा भी आता है, जगह हो, कॉफी पी रहे हो और कोड कर रहे हो, ऐसा टाइप में हो जाता है टीम के साथ बैठ के। तो वर्चुअल है, तो मीट है, तुम्हारे पास डिस्कॉर्ड है, हमारे पास सब कुछ, और प्लस इस बार मिनी इवेंट्स भी हैं। मैं सब अभी दिखाता हूँ कि क्या क्या है। मिनी इवेंट्स काफी 1-2 हो चुके हैं, लेकिन अभी 3-4 और बाकी हैं, ठीक है, और उसमें भी प्राइजेस हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जिसको भी हैकाथॉन में रजिस्टर करना है सीधे यहाँ अप्लाई विद डेफोलियो पे कर देना। हैकनोवेट का मतलब डाल दिया है कि प्रखर ने डाल दिया, ठीक है, और डेट यही है 16, 10, 17 अक्टूबर, और प्राइजेस अंडर 1.5। अब इसको चेंज करना है, अबव हो जाएगा, क्योंकि 1.5 लाख से ज़्यादा है पूल प्राइस, ठीक है। पूल प्राइस मतलब होता है कि छोटे छोटे प्राइजेस मिला के जो कि स्वैक्स और ये सब चीज़ें मिला के कितने प्राइस पूल बन रही है, तो 1.5 लाख से ज़्यादा हो गए हैं अब तो, ठीक है। 12 दिन बचे हैं, 12 दिन बचे हैं, बहुत कम टाइम है यार, ठीक है। तो इस बार हैकाथॉन है 30 आवर्स का, मिनी इवेंट्स है। मिनी इवेंट्स में तुम्हारा मीम हो गया, कई लोग यहाँ पे होंगे जो मीम बनाते होंगे, अच्छा, ठीक है। हमारे कॉलेज के खुद के पेज चल रहे हैं मीम के, जो इंस्टा पे ऑलरेडी हैं। तो मीम्स बनाओ, पैसे कमाओ, ये वाला सिस्टम है। तो अच्छे अच्छे मीम्स बनाओ, एक मीम नहीं, हमने कितना 3 डिसाइड किया है कि 3 विनर्स उठाएंगे, और उसमें हम लोग अमेजोन वाउचर देंगे, ठीक है। अमेजोन वाउचर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि स्वैग्स हम लोग डायरेक्ट शिप नहीं कर पाएंगे, तो जो मन करेगा तुम खुद खरीद लेना। और फन सेशंस तो अभी होने वाले हैं, और मतलब सेशन टॉक और ये सब, और रिवॉर्ड तो खैर आगे बढ़ते हैं उसके लिए, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डिटेल चाहिए होगी तो यहाँ पे एक लिंक है, और यहाँ पे चले जाना, तुमको सब मिल जाएगा। मतलब एक बार को मैं दिखा दिखा देता दो हूँ, खोल के। ठीक है। एक बार जो रूल्स है ना उनको क्लियर कर दो, ताकि और कोई कंफ्यूजन रहे ना किसी को, तो ऐसा ना हो। हाँ, ट्रिविया बेसिकली हिमांशु, ट्रिविया मतलब होता है एक तरह का क्विज सॉर्ट ऑफ थिंग। अभी कल ही तो हुआ था, काफी अच्छा हुआ था। कौन जीता था? कोई तो जीता था, काफी अच्छा। नाम, हाँ सर तनुज जीता था, तनुज शर्मा। तुम ऑर्गेनाइजर हो, मैं विनर नहीं आता, नहीं, गलत बात। नाम नहीं यार, हाँ मैंने वो किया, तनुज था शायद, हाँ ठीक है। तो ट्रिविया में क्या होता है, क्वेश्चंस रहते हैं क्विज टाइप के, बेसिक थे यार, बहुत बेसिक थे कि 7 वंडर्स, मतलब कितने वंडर्स हैं, बायो के ऊपर ही क्विज चल रही थी वो। पूरा बायो पे था यार काफी, कि हाँ। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, ये सब कौन नहीं बता पाएगा यार, बहुत बेसिक। और सोचो वो 500 रुपये ले गया, ठीक है। तो ऐसे कर करके अभी और बचे हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करना। मीम्स वाले में भी अच्छे खासे प्राइज हैं। और अब अगर तुम ये देखो, ये मतलब ये खुल गया, ठीक है। और हैकनोवेट के बारे में जानना है तो यहाँ पे क्लिक कर लो, कि मतलब हैकनोवेट के बारे में पढ़ना है कि क्या है, तो यहाँ पे तुमको थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ABSIT के बारे में पढ़ना है, कॉलेज के बारे में तो पढ़ लेना। रूल बुक, मैं रूल बुक एक बार दिखा देता हूँ कि रूल बुक में क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसमें पूरे रूल्स हैं जो कि तुम लोग पूछना चाहते हो, कि मतलब ये क्या है, कब होगा, कैसे होगा, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। अगर एक बार पढ़ लोगे तो सब कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा तुम्हारा, फिर भी मैं लूंगा क्वेश्चन इफ पॉसिबल। हाँ, गो नहीं, इफ पॉसिबल सर गो थ्रू कर लो। ओके, ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट हो रहा है, 30 आवर्स का हैकाथॉन होगा, 16 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है, 9 AM, मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगा, और 17 अक्टूबर को खत्म होगा करीब करीब 3 बजे, 3 साढ़े 3 मान लो, 30 घंटे का है तो हम लोग थोड़ा सा आधा घंटा मान लो डिले, ठीक है। एलिजिबिलिटी कोई भी, मतलब यहाँ पे हम लोग ने लिखा है कि ऑल स्टूडेंट्स, तो मतलब एक तरह का हमने वो चीज़ थोड़ी सी रखी है कि मतलब बाहर के मतलब सीनियर नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन अगर स्टूडेंट है तो कर लेगा, ठीक है। स्टूडेंट, मैं मान रहा हूँ स्टूडेंट MBA कर रहा है तो कर लेगा, बीटेक जरूरी नहीं है, कोई भी हो, ठीक है। कॉलेज, ब्रांच और कोई भी ईयर का, ठीक है। कुछ नहीं करना है, प्री रिक्वेस्ट तुमको यहाँ पे रजिस्टर हियर, मतलब यहाँ पे क्लिक करना, डेफोलियो की लिंक खुलेगी, और बस रजिस्टर करना है। कोई डिटेल्स मांगेगा, कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डिस्कॉर्ड का डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। यहाँ पे तुमको जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, डायरेक्ट यहाँ पे हैंडल हो जाएगी, ठीक है। मैं लिंक भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये डिस्कॉर्ड का है, डिस्कॉर्ड आई थिंक सबने बना रखा होगा, DSC में भी। और ये डिस्कॉर्ड तो काफ़ी एक्टिव हो जाओ यार, ये बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और यहीं पे सारे हमारा हैकाथॉन होगा। अब डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, यहाँ पे सारे मीम या ट्रिविया या फिर स्क्रिबल भी हुआ था, स्क्रिबल तुम लोग ने खेला होगा, दोस्तों के साथ बैठ के खेलते हो, ड्राइंग बनाते हो, या दम शराज खेला होगा, उस टाइप का स्क्रिबल में होता है, ड्राइंग बनाते हो और गेस करते हो, और जो जीता था उसको भी प्राइज मिले थे, तो वो भी इवेंट हुए थे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये तुम्हारा एक वीडियो है, प्रखर ने बनाई है,
ठीक है, काफी अच्छा वीडियो है कि मतलब कैसे रजिस्टर करना है डेफोलियो पे, ये वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, यहीं पे मतलब बस क्लिक कर लेना, तुमको मिल जाएगा कैसे करना है। ठीक है, स्टार्ट हो गया रजिस्ट्रेशन का 23 से और लास्ट डेट है 10 अक्टूबर। लेकिन मैं ये चीज कहूंगा 10 अक्टूबर नहीं रखेंगे, जैसे ही हमारे पास एनफ टीम हो जाएंगी, मतलब काफी ज्यादा टीम, हम लोग पहले भी क्लोज कर सकते हैं, डिपेंड करता है स्लॉट पे। तो इसलिए 40 तो हो चुकी है ना ऑलरेडी 40 हो चुकी है, तो हम लोग इतना भी भीड़ नहीं लाना है कि 200 या 100 टीम हो जाए ऐसी, तो मिनिमम रखेंगे कि मतलब थोड़ी सी कमी रहे, थोड़ा हम लोग के लिए भी आसान रहे। तो इसलिए वेट मत करो कि लास्ट डे को रजिस्टर करेंगे, पहले ही कर दो। ठीक है, और कुछ नहीं करना है तुमको, ये पूरा स्टेप्स बताया, डेफोलियो पे जाओ, वहाँ पे अकाउंट बनाओ, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ पे डालो और टीम के साथ करना है। देखो तरुण भैया ने पिकअप किया था कि इंडिविजुअल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं हैकाथॉन में, हम लोग भी इस चीज को मानते हैं और हैकनोवेट में हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। हैकनोवेट में मिनिमम 2 मतलब तुम और तुम्हारा दोस्त एक टीम बना सकते हो, और मैक्सिमम 3 मतलब 3 लोग की टीम मैक्सिमम हो सकती है और 2 लोग की मिनिमम। तो जो लोग इंडिविजुअल कर रहे हैं वो लोग विड्रॉ करके एप्लीकेशन मतलब टीम के साथ सबमिट करो। अगर तुम लोग का एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो बस ये रीजन है। ठीक है, कुछ मत करो, एक टीम अपने किसी को भी पकड़ लो यार, भाई को पकड़ लो, दोस्त को पकड़ लो, जूनियर को पकड़ लो, सीनियर को पकड़ लो, ठीक, किसी को भी पकड़ लो और कह दो भाई पार्टिसिपेट करो, कुछ मत कर, मेरे साथ बस रहियो। ऐसे कर करके अगर टीम नहीं मिल रही तो बना लो और उसका भी अकाउंट बनाओ और ज्वाइन अ टीम करो या मेक अ टीम करो। और अगर तुम मेक कर रहे हो, टीम बना रहे हो, तो कोड शेयर कर दो अपने दोस्त के साथ और कह दो भाई तू ज्वाइन कर ले, और अगर उसके में ज्वाइन कर रहे हो तो उसे कोड ले लो और ज्वाइन कर लो। तो ये सब कुछ इस वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, प्रखर ने काफी अच्छा एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज देख लेना। और जनरल रूल्स कुछ नहीं है कि बस यही कि प्री बिल्ड प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने होते हैं, मतलब खुद बना बनाया प्रोजेक्ट नहीं ला सकते हो। मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए। टीम लीडर शुड बी प्रेजेंट, मतलब सारे जजमेंट राउंड ऑफ कोर्स टीम लीडर जो होगा वो तो रहना ही पड़ेगा। ठीक है, और सबका डिस्कॉर्ड पे अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि डिस्कॉर्ड पे हम लोग सारे क्वेरी और सब कुछ लेंगे। ठीक है, और डिस्कॉर्ड में तुम कोई भी ऑर्गेनाइजर को तुम टैग कर सकते हो, ऐड ऑर्गेनाइजर टीम ऐसे करके टैग लगा हुआ है, किसी को मैसेज कर लो, आद्या रहती है, सलोनी रहती है, परी रहती है, प्रशांत है, स्वप्निल है, सबको ही है। ठीक है, प्रखर है, मैं, सबको यहाँ पे हैं और सबको डिस्कॉर्ड पे भी है, तो बस टैग कर दो, कोई ना कोई तुम्हारा क्वेरी उठा लेगा। क्वेरी नाम की चैनल होगी वहाँ पे, और ये तुम्हारा है एक मेंबर एक्टिव रहना चाहिए डिस्कॉर्ड पे हैकाथॉन के टाइम में, मतलब अभी नहीं, हैकाथॉन के टाइम में एक मेंबर एक्टिव रहना चाहिए। और थोड़ा हम लोग की इजनेस के लिए तुमको अपना निकनेम सर्वर का चेंज करना होगा, मतलब खुद का जो नेम होगा उसको तुम अपना टीम नेम अंडरस्कोर तुम्हारा नाम, जैसे मान लो मैंने टीम बनाई है टीम XYZ, तो मैं लिख दूंगा XYZ अंडरस्कोर कुमार सत्यार्थ, ऐसे करके जो भी टीम है तुम्हारा उसका अंडरस्कोर तुम्हारा नाम। तो हम लोग को थोड़ा इजी रहेगा तुमको देखने में, ट्रैक करने में कि तुमको क्या डाउट है, तुम्हारा क्या क्वेरी है, ऐसे करके, और साथ में इवेलुएट करने के लिए। अब आते हैं किस किस चीजों पे किस पॉइंट्स मिलेंगे मतलब हैकाथॉन के टाइम में। ठीक है, नोवेल्टी, इनोवेशन होता है कि तुमने नया क्या बनाया है। ठीक है, थीम अप्रोप्रिएटनेस एंड क्लैरिटी, कि तुमको थीम के अकॉर्डिंग कितना बनाया हो। ओपन इनोवेशन बनाया मतलब जो मन कर रहा है वो भी बनाया, एग्रीकल्चर में बनाया हो, मेडिकल में बना रहे हो, ठीक है, हॉस्पिटल का कोई है, कुछ भी बना, सोसाइटी का बना रहे हो, तो उस पर कितना तुम मैच कर पा रहे हो, मतलब सही पकड़े हो या नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी, कितना प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है, तो मैं फर्स्ट ईयर को और सेकंड ईयर को थोड़ा सा वो कर दूंगा, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, और हम लोग वो चीजें थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है कि मतलब फर्स्ट ईयर वालों से हम लोग एक्सपेक्ट उतना नहीं करते हैं, इसलिए एक सेपरेट ट्रैक भी रख रहे हैं, ताकि वहाँ पे तुमको कुछ चीज़ों से माइनस कर दिया जाएगा कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता है कोई बात नहीं, पॉइंट्स तुम्हारे कट नहीं होंगे। आई थिंक फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले इसका जो सेकंड एस्पेक्ट है ना, फीजिबिलिटी, उस पर फोकस कर सकते हैं रादर देन कॉम्प्लेक्स। हाँ, फीजिबिलिटी, प्रोजेक्ट की कितनी फीजिबिलिटी है कि मतलब कितना तुम्हारा फीजिबल, मतलब आइडिया कितना फीजिबल है, ये चीज प्रोजेक्ट कितना बना पा रहे हो। मतलब ऐसा नहीं बनाना है कि मैं एक स्पेसशिप बनाऊंगा जो वार्म होल से आपको दूसरे यूनिवर्स में ले जाए। हाँ, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली वो बनाना है जो बन सके। अभी मतलब हो सकता है तुम तब पूरा नहीं कर पाओ, बट एनी आइडिया व्हिच इज फीजिबल, व्हिच कैन बी डन, जो बन सकता है। एग्जैक्टली, हाइपोथेटिकल आइडिया नहीं बनाना है, डोरेमोन नहीं बनाना है कि डोरेमोन बना दूंगा मैं वो नहीं बन सकता। डोरेमोन को गैजेट ले आ रहे हैं, छोटा करने वाला बड़ा करने वाला। ठीक है, और यही तुम्हारा हो गया कि प्रैक्टिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, कितना प्रैक्टिकल है तुम्हारा प्रोजेक्ट और कितना सस्टेन कर सकता है। ठीक है, स्केल ऑफ इम्पैक्ट, कितना इम्पैक्ट तुम डाल सकते हो, तुम्हारा प्रोजेक्ट कितना इम्पैक्ट डाल सकता है, तुम्हारे कॉलेज में डाल सकता है इम्पैक्ट, या मान लो कोई कैंटीन का तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कैंटीन के कॉलेज के स्टूडेंट को इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पैक्ट करती हैं। यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। कई लोग बनाते हैं कि बना तो दिए, दिखने में अच्छा है, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ साइन अप पे वो ले जा रहा है मुझको होम पे, तो ऐसे कुछ चीज़ें तुमको थोड़ा माइंड में लेके चलनी पड़ती है। और पोटेंशियल फॉर फ्यूचर प्रोग्रेशन, तो मतलब समझ पा रहे हो कि फ्यूचर में तुम्हारा ये जो प्रोजेक्ट है, जो तुम्हारा POC, मतलब जो भी तुम्हारा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है वो कितना अच्छा है फ्यूचर के लिए। तो ये रूल बुक हो गया, मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ और मिनी इवेंट्स में चलते हैं।
मिनी इवेंट्स में हैक द मीम्स है, स्क्रिबल है, ट्रिविया है, सर चल सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, मृदुल का कोई डाउट आया है जल्दी अभी से। इसके बाद ले लेंगे, इसके बाद ले एक बार लेंगे। लेते हैं भाई मृदुल, बस खत्म कर लूं खटक से, फिर Q&A पे अभी इसके आते हैं। बाद ले लेंगे। हाँ ठीक है, मैं लेट नहीं करूंगा। हैक द मीम्स, ठीक है, ये तुम्हारा इवेंट है, तुम्हारा इसमें मीम बनाना है, कुछ नहीं करना है भाई, मीम बनाना है, बस कुछ चीजें हैं वो चीज ध्यान रखो। और जो भी बना रहे हो तुम मीम, वो तुम्हारा टेक्नोलॉजी पे होना चाहिए, हैकाथॉन पे होना चाहिए, इंजीनियरिंग पे होना चाहिए। अगर तुमको सैंपल देखना है ना तो डिस्कॉर्ड पे जाओ, मीम्स नाम का चैनल होगा, उसमें देखो बंदों ने कितना अच्छा अच्छा बनाया है, ठीक है। यहाँ पे प्रखर भाई साहब हैं, इतना अच्छा बनाते हैं पूछो मत, ठीक है। तो सोचो मतलब इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा यार बनाने का। कुछ नहीं करना है तुमको, एक मीम बनाना है, हैकाथॉन, कोडिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू टेक, और कुछ नहीं करना है। और सोशल मीडिया टैग्स पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे बस उसको पोस्ट कर देना है। तो हम लोग सोशल मीडिया से उठाएंगे, ट्विटर पे करो, इंस्टाग्राम पे करो, और या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर पे करो, ठीक है। 3 जगह तुम पोस्ट कर सकते हो। और कुछ रूल्स हैं कि मतलब डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, लिंक्डइन फॉलो करना चाहिए, ट्विटर फॉलो करना, वो इंस्टाग्राम फॉलो करो, तो हमारे अकाउंट से। तो ये तुम समझ रहे हो, हम लोग प्रमोशन करवा रहे हैं बेसिकली अपना। और ये जरूरी भी है कि मतलब तुम अगर हमारे हैंडल्स फॉलो नहीं करोगे तो तुमको अपडेट कैसे मिलेगा, फिर पूछोगे कि भैया ये कब हो गया इवेंट, हमको तो पता ही नहीं चला, ठीक है। और ये हैकनोवेट रुकेगा नहीं, हैकनोवेट 3.0 है, 4.0, 5.0 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। जो अभी सेकंड ईयर में उनके लिए 4.0 भी होगा, खैर कोई और कराएगा, हम नहीं तो आद्या कराएगी, चलो नहीं ये लोग भी कराएंगे, ठीक है। तुम लोग भी कराओगे, जो फर्स्ट ईयर में है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो खुद कराएंगे आगे चल के सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आके। तो वो चीज पूरा मेंटेन रहती है, लेगेसी मेंटेन रहती है। तो इसीलिए फॉलो कर लो आज ही से सारे हैंडल्स। और सबसे अच्छा तुम्हारा रूल्स है, सबसे अच्छा रूल है तुम्हारा, मतलब सबसे जो इंपॉर्टेंट रूल है कि मस्ट बी अ पार्टिसिपेंट ऑफ हैकनोवेट 3.0। अगर तुमने रजिस्टर नहीं किया है और तुम मीम बना रहे हो, मस्ती के लिए बना रहे हो, ठीक है, और अगर जीत जाते हो तो तुमको पैसे नहीं मिलेंगे। सीधी सी बात है यार, कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो ये इवेंट में करने का क्या फायदा है। तो बस कुछ नहीं, रजिस्टर कर दो हैकनोवेट में, इनवाइट 3 फ्रेंड्स करो, बिल्कुल इनवाइट करो, ये तो हम करेंगे। और टैग करो हमारे हैकनोवेट हैंडल्स को, और ये हैशटैग जरूर मेंशन करना, मतलब कहीं पे भी तुम पोस्ट करते हो। इससे क्या है कि हम लोग ट्रैक कर पाएंगे कौन कौन हमारे पे मीम बनाए हैं, ठीक है। कुछ गंदा नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, और मल्टीपल एंट्रीज आर अलाउड। बिल्कुल एक नहीं 100 मीम बनाओ, जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाओ, ठीक है। और तुम्हारा एक विनर तुम्हारा डिस्कॉर्ड सर्वर से चुना जाएगा, और क्योंकि उसमें क्या डिस्कॉर्ड में जिसपे इमोजी ये वाली लाफिंग वाली इमोजी सबसे ज्यादा रहेगी वो विनर रहेगा। और 2 विनर्स हमारे सोशल मीडिया से रहेंगे, और इंस्टाग्राम और ट्विटर। तो मैं सच बता रहा हूँ, ट्विटर पे बहुत कम है, ट्विटर पे जाओ, ट्विटर पे मचाओ, और लिंक ट्री फॉलो कर लेना, लिंक ट्री प्रखर या कोई लिंक ट्री का लिंक डाल देना एक बारी को, ठीक है। स्क्रिबल तुम्हारा हो चुका है, लेकिन एक बारी को हम लोग और कराएंगे, तो इसका मैं बाद में बताऊंगा। और ट्रिविया जरूर करना, क्योंकि ट्रिविया हम लोग आई थिंक हम लोग वेंसडे या ट्यूसडे को फिर से कराने वाले हैं, क्योंकि काफी अच्छा रिस्पॉन्स किया था इसका, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस इसमें डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, वहीं पे सब पता चल जाएगा। अब ये हो गया मिनी इवेंट्स। स्केड्यूल एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ। तुम्हारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, मिनी इवेंट्स चलते रहेंगे बीच में। अब आ जाओ 16 को ही सब कुछ है, मतलब इनॉग्रेशन, हैकिंग आवर्स, जजमेंट, क्लोजिंग राउंड, रिजल्ट तुम्हारा 18 को अक्टूबर को डिक्लेयर होगा। तो वो सब चीज़ें तो बाद में हो जाएंगी। और अब आते हैं जो सबसे ज़्यादा इंतजार किया गया है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो ड्रम रोल। तो हम लोग के जो प्राइज पूल है वो है करीब 1,50,000। तो अभी इससे भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि हम लोग के पास और स्पॉन्सर्स हैं, यू, ठीक है, थैंक्स टू आवर टीम। तो जो मेन तुम्हारा प्राइजेस हैं, तो विनर जो रहेगा पूरे हैकाथॉन का, उसको 21,000 ऐसे मिल जाएगा फ्री में। तुमने हैकाथॉन बनाया, लो मैं ही भेजूंगा, इंस्टेंट भेजूंगा एक ही दिन बाद, ठीक है। तो अगर 21,000 रुपये चाहिए तो जरूर पार्टिसिपेट करना। स्वैग्स किट्स में सब रहेंगे, टी शर्ट रहेगा, स्टिकर्स रहेगा, और अगर देखते हैं अगर और कुछ भी बन पाता है तो वो करवाएंगे, ठीक है। तो अगर किसी को स्वैग पसंद होगा बहुत ज्यादा, जैसे गूगल क्लाउड के बहुत लोग पहने हैं, तरुण भी आप किसका पहने हैं? अभी पहने लग रहा है तो पहने, तो सब कोई एक ना कोई टी शर्ट नहीं खरीदता है, कोई बीटेक में टी शर्ट कोई खरीदता ही नहीं है, ठीक है। हम लोग तो नहीं खरीदते हैं, इतने टी शर्ट मिल जाते हैं स्वैग से। तो ये हो गया। और अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट वो सबको मिलेंगे, लगा सकते हो, लिंक्डइन पे छा सकते हो, ठीक है। रनर अप को 11,000 मिलेंगी, रनर अप टीम को, और स्वैग किट और सर्टिफिकेट। और जो सेकंड रनर अप, मतलब बेसिकली जो थर्ड पोजीशन है, उनको 5,100 मिलेंगे, ठीक है। और स्वैग किट और अप्रिशिएशन तो रहेंगी, ठीक है। और जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेंगे, और प्लस सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, इससे अच्छा एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अब कुछ प्राइस ट्रैक है हमारे पास, मतलब ट्रैक प्राइस हैं जो कि
अभी 4 ही मेंशन हुए हैं जो कि और अभी मेंशन करने हैं, तो कल तक आई होप अपडेट हो जाएगा ये, क्योंकि आज टाइम नहीं मिला था तो अपडेट कर देंगे। तो पॉलीगन के हैं, पॉलीगन अगर कोई ब्लॉकचेन पे बनाता है तो इथेरियम पे प्रोजेक्ट बनाते हो तो 10,000 मिलेंगे अगर थोड़ा सा भी सही प्रोजेक्ट है तुम्हारा, और पॉलीगन इंटीग्रेट कर लेते हो तो 15,000। मतलब ये भी जीत सकते हो और ये भी जीत सकते हो। पिछली बार जो हमारा विनर था हैकनोवेट 2.0 का, उस बंदे ने फर्स्ट प्राइज भी ग्रैब किया था और प्लस पॉलीगन का भी ग्रैब कर लिया था 15,000। तो सोचो कितना ज्यादा वो मतलब पैसे मिलते हैं, ठीक है। और टेजोस में इतने सब मतलब देख लेना, मतलब काफी अच्छे हैं तुम्हारे, एक बार पढ़ लेना कि क्या है, जो ब्लॉकचेन में होगा उनके लिए भी है। और प्लस एक सैवो लैब्स करके ट्रैक है, ठीक है, उसमें क्या है तुमको एक एपीआई बनानी, मतलब बेसिकली तुम लोग फॉर्म बनाते होगे, राइट, कोई भी ऑथेंटिकेशन का साइन अप डालते होगे, ईमेल आईडी और पासवर्ड के लिए फॉर्म बनाते होगे, वो तुम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते हो। तो सैवो लैब्स एक एपीआई है, ठीक है, उसमें तुमको बनी बनाई कोड मिलेगी, उनको बस तुमको उठा के अपने कोड में डालना है और तुम उस ट्रैक प्राइस के लिए अवेलेबल रहोगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो $100 100 है, हाँ $100 देंगे अपने ट्रैक प्राइस को। मतलब तुम ये जो 21,000 देख रहे हो, ये इसके लिए भी एलिजिबल हो, मतलब इन सम प्राइजेस के लिए भी एलिजिबल हो और ट्रैक प्राइस के लिए भी एलिजिबल हो। तो सोचो तुम 4 लाइन ऑफ कोड के मदद से तुम एक ट्रैक प्राइस को टारगेट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है, उनके काफी सारे मर्चेंडाइज मिलेंगे, मतलब उनकी स्वैग किट है काफी अच्छी, जिसमें टी शर्ट, बॉटल, माउस पैड, पता नहीं क्या क्या देते हैं यार, पेन, डायरी, ऐसा करके पूरा भरमार है दुनिया भर का, ठीक है। और इतना अच्छा प्यारा सा बॉक्स रहता है, वो भी देंगे। तो वो एक सैवो वाली एपीआई है, इसमें डाला नहीं है, वो भी डल जाएगा, तो एक बार चेक कर लेना। और मैं सजेस्ट करूंगा फर्स्टली मेनली सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर वालों को कि तुम लोग उस प्राइस को जरूर तुम लोग एक्सप्लोर करना, क्योंकि वो क्या है ना, तुम लोग अगर ये सोचते हो कि मैं क्या बना पाऊंगा, तो ये जरूर यहाँ से तुम लोग को एक 4 लाइन की कोड यूज करने से तुम एक ट्रैक प्राइस के लिए एलिजिबल होगे। और क्या पता कि टॉप 3 में आ जाओ तुम, क्योंकि वो बहुत कम ही लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ये मैं तुमको एक टॉप सीक्रेट बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रैक प्राइस बहुत कम लोग टारगेट करते हैं, पता ही नहीं रहता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे तुम लोग को बता दिया हूँ, जितने 50 लोग जो भी हैं। और बाकी FAQ देख लेना, FAQ पे मैं नहीं जाऊँगा, या फिर को देख लेते हैं एक बार। नहीं है, प्यारे प्यारे से FAQ है, ठीक है। हैकाथॉन क्या है, मतलब मैं अटेंड नहीं किया हूँ, क्या करूँ, कौन कर सकता है अटेंड, टीम चाहिए, हाँ बिल्कुल, तो कोई भी क्लिक करके देख लेना, मतलब सब बढ़िया सा प्यारे से टीम बनाई हुई है हमारी। और कोई क्वेश्चन है तो मैं अपना नंबर डाल दूंगा, उसको तुम लोग कॉल कर सकते हो, बेसिकली कॉल या मतलब हैकनोवेट के टाइम के बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं मेनली तुम लोग को सजेस्ट करूंगा कि डिस्कॉर्ड पे आओ, डिस्कॉर्ड पे अपनी टीम को, हमारी क्वेरी मतलब ऑर्गेनाइजिंग टीम को टैग करो, ताकि वहाँ पे अच्छे से तुमको वॉइस चैनल में लेके स्क्रीन शेयर करके पूरा सब कुछ तुम्हारा प्रॉपर क्वेरी को हैंडल कर पाएँ, ठीक है। तो डिस्कॉर्ड का लिंक ऑलरेडी डाल दिया है और लिंक ट्री भी डाल दिया है, ठीक है। तो प्रखर ने दोनों डाल दिया, मैंने डाल दिया, तो ये दोनों जरूर ज्वाइन कर लो और हैकाथॉन को रजिस्टर कर लो। बिल्कुल वेट मत करो, मैं तो बस इतना कहूँगा, वेट मत करो। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कल करूँगा, कल परसों करूँगा, तो भाई इसका नहीं पता कब बंद हो जाए, कर लो, वही चीज़ है। क्योंकि टीम्स के अगर वॉल्यूम, ये सेशन के बाद आई एम श्योर कि टीम्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, एंड हमारे पास एक लिमिटेड स्लॉट्स ही है, आई थिंक 70-80 टीम्स का टारगेट है इतना देर, ठीक है। और मैं अपना नंबर डाल दे रहा हूँ नाम के साथ, तो अगर किसी को मतलब कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ट्रैक रिलेटेड क्वेरी करनी है, जैसे मैं सैवो लैब्स वाला बता रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा ट्रैक है, मतलब पर्सनली बता रहा हूँ, मतलब अच्छे खासे, मतलब बहुत कम लोग टारगेट करेंगे, मतलब यहाँ पे 52 लोग हैं, तो इसमें मतलब हटा लो 10-40 लोग को मैं बता रहा हूँ कि बहुत कम लोग टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि बाहर वाले लोगों को पता नहीं रहता है मेनली क्या करना है। और छोटा सा 4 लाइन का कोड यूज़ करके तुम मतलब अच्छा खासा ट्रैक प्राइस में एंटर कर सकते हो, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, मेनली मेन टारगेट को करते हैं, मतलब मेन प्राइस को करते हैं कि मतलब यार हैकाथॉन में ज़्यादा टारगेट करो। तो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर वाले मेनली इसको टारगेट कर सकते हैं, और थर्ड ईयर तो वो कोड हम पहले भी देख सकते हैं या जब ही मिलेगा हमें हैकाथॉन में? कुछ नहीं यार, मतलब बेसिकली सैवो का एक वो है, मैं आई थिंक वो इसी में ऐड कर देना ना डॉक में, उसका प्रोसेस। हाँ मैं डॉक में ही ऐड कर दूंगा। हर्षित मैं एक काम करूंगा ना, ये जो प्राइस वाला है ना, मतलब इसी में मैं ऐड कर दूंगा, या फिर यहाँ पे अलग से डाल दूंगा अबाउट सैवो, यहाँ ये पे प्राइस में डाल दूंगा अलग से, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। तो थोड़ा सा वहाँ से तुम देख सकते हो। बाकी कोई क्वेरी रहेगी तो मुझको कॉल कर लेना है, मैसेज कर लेना, मैं तुमको उस ट्रैक के रिलेटेड तो बिल्कुल बता दूंगा। अब Q&A ले लें सेशन? थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल हो गया मेरे तो से, डन। ठीक है, मुकुल यू कैन ओपन। हाँ सर, तो ये पूछा था कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है, मतलब हमें अपना प्रोजेक्ट बनाना है या फिर कोई टास्क होगा उसको लेके सोचना, उस पर वर्क करना है? नहीं, मैं बताता हूँ। सो इसके अंदर क्या है, तुम पहले डेवफोलियो पर रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है।
डेव पोलियो रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे जितने ट्रैक्स हैं उन ट्रैक्स में मतलब जितने थीम्स हैं हमारे ट्रैक पे हम थीम्स हैं हमारे जितने एक बार उन थीम्स पे जाना प्लीज सकते हैं। तो जितने हमारे थीम्स हैं ठीक है जैसे जो भी देख रहे हो फिनटेक है एग्रीकल्चर है रिन्यूएबल एनर्जी है ये सारे थीम्स हैं हमारे। इन थीम्स में से किसी पे भी आपको एक आइडिया सोचना है एंड उस पर आप डिसाइड करोगे कि हाँ मैं ये बनाऊंगा। अगर आप इन ट्रैक्स में से इन थीम्स में से नहीं कर रहे हो कुछ अलग आइडिया है आपके पास तो यू कैन गिव योर पार्टिसिपेशन इन ओपन इनोवेशन एंड वो जो प्रोजेक्ट तुम सोच के आओगे वो तुमको विद इन 30 आवर्स इम्प्लीमेंट करना है जिसके ऊपर यू विल बी जज्ड यू विल बी मेंटर्ड एंड लास्टली आपका वो रिजल्ट बनेगा मार्क्स के बेस पे। अब पॉइंट वही है कि प्रोजेक्ट इवेल्युएट कैसे होगा तो सत्यार्थ ने ऑलरेडी इवेल्युएशन क्राइटेरिया पूरा कवर किया है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं इनके ऊपर इवेल्युएशन होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रोजेक्ट उन सारे पॉइंट्स को कवर अप करे सारे नहीं तो मोस्ट ऑफ देम कवर अप होने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी क्या रहेगी मतलब अगर ऑब्वियसली ऑनलाइन हो रहा है तो फिर तो मतलब कहीं भी कोड कहीं किसी का रखा हुआ कोड बना हुआ। तो हम लोग के पास हम लोग जब इस चीज़ को मेंटर करेंगे ठीक है तो ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग के देखे हुए हैं एंड वो जब हम देखते हैं तो वो समझ आ जाता है कि वो किसने बनाया आपने बनाया कि कहीं से कॉपी किया। सेकेंडली जितने भी प्रोजेक्ट्स हम लोग चूज करेंगे उनको ऑलरेडी प्लेगरिज्म वेरीफाइड डेफोलियो भी करता है और हम भी करते हैं। लास्ट ईयर पे आई थिंक एक टीम को डिस्क्वालीफाई किया था हमने बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन ओवर प्लेगरिज्म। वो टीम टॉप 3 में आ गई थी। सेकंड टीम में आ गई थी वो सेकंड बनी थी उसके पॉइंट के हिसाब से लेकिन प्लेगरिज्म डिटेक्टर जो भी थी पकड़े गए वो पकड़े गए और फिर मतलब डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया। ट्राई करो भले छोटा बना रहे हो बट अपना बनाओ क्योंकि उसको बाद में एक्सपेंड करने का आपको अपॉर्चुनिटी रहेगा। उठा के करोगे एक तो पकड़े जाओगे तो डिफेमेशन मिलेगा ठीक है वहाँ पे लोग को पता दोस्तों को पता लगेगा कि अरे यार ये तो ऐसे चीटिंग वीटिंग कर रहा है क्या कर रहा है अगली बार तुमको टीम में भी नहीं लेंगे। एंड सेकेंडली उसको वो तुम्हारा प्रोजेक्ट भी काउंट नहीं होगा क्योंकि रेज्यूमे में डालोगे तो ये बात इंटरव्यूअर को ही पता है कि वो कॉपीड। और ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले मतलब इतना चिंता ना करो तुम लोग की प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए बहुत बड़ा बनाना है एमएल मॉडल। अरे वो छोटा सा बना के लाओ यार एक वेब पेज बना के लाओ उस पे भी हम तुमको मेंटर करेंगे गाइड करेंगे। बिल्कुल क्योंकि मेंटर्स हमारे पास हैं जैसे देवराज भैया तरुण भैया और एक और है शिवा भैया हैं तो 3 मेंटर्स हमारे पास एक और हैं तुषार भैया भी हैं ठीक है। हाँ तो 4 मेंटर्स रहेंगे तुम्हारे पास तो वो डिस्कॉर्ड में हमेशा अवेलेबल रहेंगे 24 घंटा मैं बोल रहा हूँ ठीक है। कुछ नहीं तो यार हम खुद हैं यार हम तो अवेलेबल हैं ही ठीक है। तो कभी भी तुम पिंग करो रात में 2 बजे 3 बजे 10 बजे कभी भी कर दो अवेलेबल रहेंगे कोई भी क्वेरी है तुम्हारा उठा लेंगे। आइडिया रिलेटेड क्वेरी कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो भी तुम पूछ सकते हो। पूरी कोर टीम भी अवेलेबल है यार हम सभी नहीं है पूरी कोर टीम है तुम्हारे दोस्त हैं सब अवेलेबल है यार। कम्युनिटी इस तरीके से चलती है एनडीएससी कम्युनिटी है ऑब्वियसली पहले दिन ये चीज़ क्लियर की थी तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई थिंक बस किसी और का क्वेरी है तो जल्दी से करते हैं फिर। हाँ यार Q&A कर लो फिर हैकटोबर फेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ फिर कनिष्क आई थिंक हैकटोबर फेस्ट ले रहा है ना कनिष्क हरिओम ले सकते हैं। हाँ ठीक है कनिष्क ठीक है आप क्वेरीज ले लीजिए सर। हाँ क्वेरी जल्दी से किसी का कोई है तो बताओ नहीं फिर कॉल कर लेना। हैकनोवेट पे क्वेरीज कर लो गाइस फटाफट जो भी यही क्योंकि यहाँ क्लियर कर लो ज़्यादा बेटर रहेगा औरों को भी हो सकता है आपकी क्वेरी से बेनिफिट हो। अभी था ना कोई पहले कौन था अभी सेशन के बीच में जिसने पूछा था कोई था अच्छा ठीक है सर मृदुल का आया था सर मृदुल कोई डाउट है पूछ लो भाई। भैया वो मुकुंद ने पूछ लिया था मैं वही पूछना चाह रहा था कि ऑनलाइन आप कोई कॉपी कर ले ऑनलाइन की हेल्प ले सकते हैं वैसे हम जैसे हमें इतना नहीं आता कोडिंग। हाँ देखो हेल्प लेना प्रोजेक्ट नहीं कॉपी करना कोई चीज है नहीं हेल्प में एक बात बता दो कैसे हेल्प ले सकते हैं। हाँ बताओ। एक तो कॉपी करके पेस्ट कर दिया एक है वैसे ले लिया हेडिंग ले लिया स्टेप पे या अपना एडिट कर दिया उसमें कैसे हमें पता कैसे चलेगा। ओके देखो मैं एग्जांपल देता हूँ मान लो तुम पाइथन सीख रहे हो ठीक है तो पाइथन पे अगर तुम सर्च करोगे तो कोडबेस थ्योरी का एक बहुत फेमस ट्यूटोरियल है जो मोस्ट ऑफ द लोग मिनी प्रोजेक्ट में बनाते हैं वो है तुम्हारा वो वॉइस वाला जारविस जिसमें तुम मुझसे बोलोगे ओपन यूट्यूब खोलता है ओपन गूगल खोलता है ठीक है। तो अब जैसे ये प्रोजेक्ट हो गया तो अब ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम सबको पता है कि कोडबेस थ्योरी पे अवेलेबल है। अगर तुम ये बना के लेके आते हो जिसका कोड ऑलरेडी वो बंदा देता है वहाँ पे एंड दिखाते हो तो वहाँ पे आपका वो प्लेगरिज्म है राइट। बट अगर आप उसी आइडिया को यूज़ करके उस बेस को यूज़ करके कुछ अपना बना के लेके आते हो मान लो अब तुम गूगल यूट्यूब को ऑटोमेट नहीं कर रहे हो तुम ऑटोमेट कर रहे हो मान लो यूडेमी की किसी वेबसाइट पे कि आप जो कोर्स बोलोगे वो सर्च होके आ जाएगा या किसी भी और चीज़ को ऑटोमेट कर रहे हो यूजिंग द सेम थिंग। सो वो प्लेगरिज्म नहीं है वो लर्निंग है कि तुमने कॉन्सेप्ट सीखा और उसको कहीं और इम्प्लीमेंट किया। सो दिस इज व्हाट वी वांट। आप वो काम कर सकते हो आप टेक्निक ले सकते हो कि टेक्निक क्या है
वो कोड होगा कैसे, अगर मैं वॉइस असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ वॉइस असिस्टेंट कैसे बनेगा, कौन सी लाइब्रेरी है, कैसे यूज करते हैं, दैट इज डुएबल. बट इफ यू कॉपी द होल प्रोजेक्ट, एवरी लाइन विल बी कॉपीड फ्रॉम समवेयर, इवन प्रेजेंटेशन भी कॉपी रहेगा, तो वहाँ पे वी विल श्योरली डिस्क्वालीफाई. ठीक है, आई थिंक सबका हो गया. कनिष्क, नाउ यू कैन टेक ऑन Hacktoberfest. फॉर Hacktoberfest. तो पहले तो थैंक यू तरुण सर, सत्यार्थ सर और देवराज सर भी टाइम निकाल के आए, पवन सर भी है. सो काफी अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत सारे डाउट्स क्लियर करे और काफी कुछ नया भी पता चला हैकाथॉन के बारे में. आप लोगों ने काफी सारी चीजें, आई गेस फर्स्ट ईयर को काफी चीजें नई पता चली होंगी जो उन्हें पहले पता नहीं थी. और साथ ही साथ सत्यार्थ सर ने भी और पवन सर ने भी और आप लोगों ने भी बताया कि हैकनोवेट में क्या क्या मिनी इवेंट्स थे और आगे होने वाला है. सो थैंक यू फॉर दैट. एंड देवराज आप टाइम निकाल के आए, काफी अच्छा लगा. सो थैंक यू देवराज सर. तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो थर्ड पार्ट था इस इवेंट का, जो कि है हमारा हैक्टोबरफेस्ट. ठीक है, तो आई गेस आप लोगों ने हमारा 9 सितंबर को जो इवेंट था, ठीक है, ग्रॉकिंग गिटहब विद ग्रॉकिंग ओपन सोर्स विद गिटहब, ठीक है, उसे ज्वाइन करा होगा शायद. तो आई गेस कि सभी लोगों का गिटहब पे अकाउंट है. अगर गिटहब पे अकाउंट है तो प्लीज +1 यहाँ पे चैट बॉक्स पे एक बार कर लो, मैं थोड़ा देख लूँ. सर थोड़ी रिस्पेक्ट थी इस वजह से आपको देवराज सर कह रहा था. भाई रिस्पेक्ट सब काम बराबर ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई. मतलब देवराज से भी इक्वली रिस्पेक्ट होती है यार, मतलब ओके वो नहीं मिथ सर, है. भैया उतना चलेगा सर, इससे हाँ आगे भैया चलेगा यार, भैया चलेगा. मतलब देवराज भी कूल है यार, मतलब सर वाले काम नहीं किए कुछ यार. बाल सफेद हुए, बुढ़ापा थोड़ी आ गया, सर सर बोल रहे हो यार तुम. नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है. तो जैसा कि चैट बॉक्स में दिख रहा है काफी सारे लोग हैं जिन्होंने गिटहब ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है. तो हैक्टोबरफेस्ट के बारे में एक बार बेसिक से बता देता हूँ. ठीक है, छोटी छोटी जो बातें हैं वो बता देता हूँ. तो हैक्टोबरफेस्ट एक्चुअली एक ओपन सोर्स का एक इवेंट है जिसमें आप गिटहब पे कंट्रीब्यूट करते. ठीक है, और ये इवेंट काफी सारी कंपनीज हैं जैसे कि डिजिटल ओशन हो गई, इंटेल हो गई, डेव हो गई, ये सारी कंपनीज मिलके इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराती है. तो इस इवेंट में 30 डेज के अंदर आपको 4 पुल रिक्वेस्ट करनी होती है अपने गिटहब से किसी एक ऐसी रिपोजिटरी में जो कि हैक्टोबरफेस्ट से अप्रूव्ड हो. ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है. आप पुल रिक्वेस्ट जनरेट करते हो, वो पुल रिक्वेस्ट या तो एक्सेप्ट हो जाए या फिर मर्ज हो जाए. ठीक है, मर्ज इज कि आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी हो गई है और वहां पे मेन ब्रांच को उन्होंने, यानी जो मास्टर ब्रांच है वहां पे उन्होंने ऐड कर लिया है वो रिक्वेस्ट. अगर वो एक्सेप्ट भी हो जाती है तो भी वो काउंट होती है एज अ पीआर, वो एक वैलिड पीआर में काउंट होती है. तो जो चीज इस बार एक वार्निंग के तौर पे अवेलेबल है यहाँ पे, वो है कि आपको वैलिड करनी है और वो मॉनिटर की जाएंगी डिजिटल ओशन से हर बार की तरह. और 2 इनवैलिड पुल रिक्वेस्ट अगर आप करते हो तो आप सीधे चैलेंज से बाहर हो जाते हो. तो मोटिवेशन है कि आपको ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने से काफी कुछ नया सीखने को मिलता ही है, प्लस साथ ही साथ आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो. ठीक है, तो ओपन सोर्स इज लाइक कि आप कंट्रीब्यूट करिए और उसके बदले में आप काफी अच्छे रिवॉर्ड्स जीतने का मौका मिलता है. सो बेसिकली रिवॉर्ड्स की अगर एक छोटी सी हाईलाइट दूं तो एक टी शर्ट रहती है हैक्टोबरफेस्ट की, हर साल एक लिमिटेड एडिशन टी शर्ट आती है, वो आपको देखने को मिलती है. और काफी सारे भाई बहुत सारे स्टिकर्स मिलते हैं, काफी हैवी कलेक्शन मिलता है इनका. स्टिकर बैग्स का बहुत अच्छा कलेक्शन रहता है, तो वो भी आपको मिलेगा. और एक साथ ही साथ अगर कोई डिजिटल ओशन का यूज करता है तो उसको $300 का क्रेडिट मिलता है डिजिटल ओशन से, जो कि आप यूज कर सकते हो अपने उस पे. और काफी सारे बैजेस मिलते हैं, लाइक आप उनको यूज कर सकते हो अपने सोशल मीडिया पे और उसको अपने मतलब लिंक्डइन पे शो कर सकते हो कि हाँ आपने हैक्टोबरफेस्ट चैलेंज में पार्टिसिपेट करा था और आपने अपनी पुल रिक्वेस्ट को वैलिड पुल रिक्वेस्ट सबमिट करी और आपने उसे कंप्लीट करा चैलेंज को. ठीक है, तो फिलहाल मैं चाहूंगा कि कोई एक यहाँ पे आपको एक ऑप्शन, हाँ ट्री लगाने का भी मिलता था, बताना भूल गया. अगर कोई ऐसा है आप लोगों में से, ठीक है, जिसको टी शर्ट नहीं चाहिए और वो एक नोबल कॉज में मतलब कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो वो अपने नाम से एक ट्री प्लांट कर सकता है. ठीक है, डिजिटल ओशन आपके नाम से एक ट्री प्लांट करती है, वो उनकी एक कोई साइट है, वो वहीं आपको रिसोर्सेज में मिल जाएगी.
तो वहां पे जाके वो ट्रीज प्लांट करते हैं और उनके सोशल मीडिया हैंडल पे आपके नाम से एक पोस्ट भी जाती है कि हाँ कनिष कुमार गुप्ता ने या फिर प्रखर शर्मा ने एक ट्री प्लांट करा था और इस चैलेंज को कंप्लीट करने पे उन्होंने एक ट्री प्लांट करा और एक नोबेल कॉज की तरफ उन्होंने एक स्टेप लिया। ठीक है, तो ये चीजें तो बेसिक थी जो कि मेरे को डिस्कस करनी थी। और मैं एक चीज जो चाह रहा था कि मतलब सभी लोग ओबे करें, प्लीज बॉट रिपोजिटरीज ना बनाए, है ना। अगर कोई चीज अगर आप अचीव कर रहे हो तो यार उसका मजा तभी आता है कि जब आप कोई वैलिड तरीके से उस चीज को लो। तो मैं यही चाहूंगा कि यार सभी लोग अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ओपन सोर्स में, गिटहब पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो प्लीज थोड़ा जेन्युइन तरीके से करो। एक क्वालिटी लेवल पे अगर काम करते हो तो वो काफी अच्छा लगता है और वो आपको आगे फ्यूचर में बेनिफिट जरूर करेगा। तो फिलहाल अगर यहाँ पे मैंने देख लिया कि काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है गिटहब पे, तो अगर कोई ऐसा है जो चाहता है कि वो मुझे वॉलंटियर करे ताकि मैं उसे पूरे फर्दर स्टेप्स बता सकूं ताकि वो कैसे वो रजिस्टर करना है हैकटोबरफेस्ट पे, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। कोई है? सिंपली मतलब हैंड रेस कर दो। ये चीज, हाँ ये चीज दिखा दो एक बार। हाँ मृदुल करेगा, मृदुल तुम्हारा गिटहब का अकाउंट है, एक बार अनम्यूट करके बोल दो। हाँ भैया है, मेरा अकाउंट है तो चलो एक काम करो, तुम स्क्रीन शेयर कर दो, स्क्रीन शेयर करो, तुम्हारे थ्रू सभी लोग भी सीख जाएंगे तो काफी ठीक रहेगा। एक मिनट भैया कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आराम से। कमिंग टू द लिंक, आई गेस तरुण भाई थैंक यू, आपने लिंक डाल दी चैट बॉक्स में, कोई बात नहीं, थैंक यू सर। भाई मुझे काफी ठीक लगता अगर कोई डेस्कटॉप से ज्वाइन करता। एक्चुअली इससे थोड़ी दिक्कतें आ जाती है, अगर डेस्कटॉप से ज्वाइन कर सको तो डेस्कटॉप से ज्वाइन कर लो। एक मिनट भैया करता हूँ अभी ज्वाइन। कोई और मतलब जो करना चाहेगा? अच्छा, यहाँ पे कितने जनों लास्ट ईयर किया था अक्टूबरफेस्ट? तरुण में मैंने करा था और आपको और बाकी कितने? प्रखर मैंने भी किया था सर। ग्रेट ग्रेट। आद्या ने भी किया था, बहुत बढ़िया। और आशुतोष आपने भी किया, बहुत बढ़िया। सारी कोर टीम ने किया, बहुत अच्छा, नाइस। मृदुल टाइम लग रहा है तो हम किसी और को पिक करें। अभी चालू हो रहा है लैपटॉप। क्या लैपटॉप अभी स्टार्ट करा है, जस्ट बूट करा है? हाँ हाँ स्टार्ट किया है। कोई इशू नहीं, कोई और भी अगर करना चाहे तो आ जाओ, फटाफट आ जाओ जो लैपटॉप से जाएंगे। कोई और आ जाओ, वरना मैं कर दूँ। नहीं तो मैं कर दूं सर। मैं सोच रहा था सर अगर कोई वॉलंटियर करके करते तो ज़्यादा ठीक रहता, है ना, सबको वो भी समझ करेगी, में आ सलोनी कह रही है करने। मैं करूं सर? आवाज़ नहीं आ रही सलोनी आपकी। आवाज़ नहीं आ रही सर? नहीं अभी नहीं आ रही। आई थिंक सलोनी कह रही है करने के लिए। नहीं वांट टू वॉलंटियर। हेलो, नहीं मेरी आवाज़ नहीं आ रही सर? आपकी आ रही है, सलोनी की नहीं आ रही। अच्छा, हाँ आप ही कर लो, कोई इशू। मेरी आ रही है? हाँ आ रही है, कर लो आप ही कर लो। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। कोई ऑडियंस में से कर रहा है तो बता दो, नहीं तो हम कर देंगे। कोई भी कर लो, वॉलंटियर कोई कर लो। गाइस रजिस्ट्रेशन ही करना है आपसे, पेटीएम। गाइस रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं, पेटीएम थोड़ी करवा रहे हैं कि पेटीएम करो। रजिस्ट्रेशन यार कोई कर आगे चल के करना ही है सबको।
तो आई गेस मेरी स्क्रीन विजिबल है सब लोगों को। टी-शर्ट हाँ ब्रो है cool। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक टैब खोल के रखा हुआ है, hacktoberfest.digitalocean.com पे साइट खोली है, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है भैया मेरी? हाँ गणेश के है ना? तो देखो ये बेसिक स्क्रीन है, जो होम पेज है हमें डिजिटल ओशन की वेबसाइट पे मिलता है, जो कि मैंने आपको चैट बॉक्स पे लिंक आपको तरुण सर ने डाल रखा है, आप देख सकते हो। ये अक्टूबरफेस्ट की साइट है, ये होम पेज है, ठीक है। आई गेस सभी लोग होम पेज पे है, अगर कोई मेरे साथ डायरेक्टली अभी कर रहा है तो आई गेस ये फर्स्ट स्टेप है। तो स्टेप 1 यही है कि हम होम पेज पे है और यहाँ पे हमें स्टार्ट हैकिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। तो सॉरी ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, एक मिनट गाइस, जस्ट गिव मी एक सेकंड, ये ऑलरेडी मैंने लिंक कर रखी है। कनिष्क ने तो वॉलपेपर भी लगाया हुआ है अक्टूबरफेस्ट का, साथ ही ऑब्सेस है ये। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था, वो नहीं cool उसमें है, साथ ही मिला था ना रिसोर्स किट में, इस वजह से कर लिया था। हाँ। एक मिनट नहीं बनाया भी अच्छा, डिजाइन अच्छा किया इस बार इन लोगों ने अक्टूबरफेस्ट का पेज। के स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ मैं सीधे अक्टूबरफेस्ट की साइट पे जा रहा हूँ और ये होम पेज है, ठीक है। आई गेस सभी लोगों ने अक्टूबरफेस्ट की साइट खोल ली होगी। तो पहला स्टेप है कि आपका अकाउंट जो है गिटहब पे या गिटलैब पे होना कंपलसरी है, ठीक है। इसके बिना आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मैंने गिटहब पे ऑलरेडी अपना अकाउंट बना रखा था और अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। साइन अप करेंगे अपने लोग। तो मैं अपना मेल डाल देता हूँ। तो अपने को क्या करना है, गिटहब पे जाके सीधे साइन इन कर लेना है, ओके। और साइन इन करने पे वो ऑथराइज करना चाहेगा हैकटोबरफेस्ट से, ठीक है। तो अपने लोगों को हैकटोबरफेस्ट को ऑथराइज करना है कि वो हमारी रिपोजिटरीज को व्यू कर सके और जो भी हम काम कर रहे हैं ना गिटहब पे आने वाले कुछ टाइम के लिए उसको मॉनिटर कर सके, इसलिए हम उसे ऑथराइज कर देंगे। और जैसे ही आप लोग ऑथराइज कर दोगे ना, आप सीधे स्टेप 2 पे आ जाओगे। और स्टेप 2 इज ऑल अबाउट कि आप यहाँ के जो भी रूल्स हैं हैकटोबरफेस्ट के उनको आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई, गिटहब में लॉगिन करने में कोई दिक्कत आई तो बता दो। नहीं भैया सही है। कोई दिक्कत आई नहीं आई ना? नहीं भैया। तो स्टेप 2 में क्या करना है, अपने को अपनी ईमेल एड्रेस को सेलेक्ट करना है, ठीक है। लोकेशन अपनी कंट्री वाइज आप डाल दो, यहाँ पे सर्च करोगे इंडिया मिल जाएगा आपको, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आप लोग को पार्टिसिपेंट के फॉर्म में ही करना है, ठीक है। फेयर मीन्स में बोलूँ तो पार्टिसिपेंट में ही करना सबसे बेस्ट चीज़ है। मतलब थोड़ा अनफेयर मीन्स यूज ना करो तो ज़्यादा ही अच्छा है। एटलीस्ट अपनी स्किल्स के लिए अगर वर्क करना चाह रहे हो और कुछ मतलब लीगली जीतना चाह रहे हो कि यार हाँ मैं वैलिड तरीके से जीतना चाहता हूँ, एकदम जेन्युइन तरीके से एक टी शर्ट जीतना चाह रहा हूँ या फिर कोई भी प्राइज है वो जीतना चाह रहा हूँ, तो प्लीज पार्टिसिपेंट से ही करना, ठीक है। और ये ऑप्टेन है, यहाँ पे आप इनके जो भी अपडेट्स आते हैं उनको अपने मेल पे रिसीव करने के लिए आप चेक मार्क कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे चेक मार्क कर दे रहा हूँ। तो बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट केवल डिजिटल ओशन का और इंटेल का रहता है। लास्ट टाइम भी मैंने करा था, लेकिन अगर आप चाहो तो चारों कर दो चेक मार्क, ज़्यादा नोटिफिकेशंस नहीं आते इन सब से। उसके बाद आपने इनके रूल्स मान लिए हैं, ये आप मानते हैं, आपने यहाँ पे चेक इन कर लिया और इसके बाद आप सीधे नेक्स्ट करेंगे, ओके। यहाँ आपने नेक्स्ट करा और यहाँ पे आपका हैकटोबरफेस्ट का पूरा जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होने वाला है। आपको यहाँ पे कंफर्मेशन देना है कि हाँ जो भी रूल्स हैं मैं वो समझ चुका हूँ। और मैं अगर देखो यहाँ पे लिखा भी है कि I acknowledge that I will be disqualified indefinitely from Hacktoberfest if I submit 2 invalid pull request। जैसा कि मैंने बताया 2 invalid pull request और आप Hacktoberfest चैलेंज से बाहर हो जाओगे सीधा। कोई वो नहीं कि
कोई सेकंड वे नहीं है या कोई वैसा तरीका है जिससे मैं रिकवर कर सकूँ आईडी, तो ऐसा कोई भी मेथड नहीं है। आपने 2 इनवैलिड पुल रिक्वेस्ट जमा करी और आप सीधे बाहर। और एक चीज जो मैं बताना भूल गया वो मैं आपको बता दूं कि जो भी आप पुल रिक्वेस्ट डालते हो, ठीक है, कोई भी पुल रिक्वेस्ट अगर आप डाल रहे हो तो वो पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद 14 डेज के अंदर मैच्योर होती है। उस 14 डेज में डिजिटल ओशन की टीम और बाकी मेंटेनर्स की टीम जो है आपकी पुल रिक्वेस्ट को चेक करती है, देखती है कि वो कोई मतलब लो क्वालिटी पुल रिक्वेस्ट तो नहीं है, कि मतलब आपने कोई एक सिंगल सा सेमीकोलन या फिर एक छोटा सा मतलब फुल स्टॉप पंक्चुएशन मार्क लगा के आपने एक सबमिट कर दी पुल रिक्वेस्ट और वो एक्सेप्ट हो गई। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी पुल रिक्वेस्ट का मतलब यही होता है कि आप एक अच्छा खासा कंटेंट जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हो और कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर रहे हो। तो ये जो रूल्स है आपने इन सबको एक्सेप्ट कर लिया और इसके बाद आप स्टार्ट हैकिंग पे क्लिक करोगे और ये आपका पूरा जो प्रोफाइल है वो रेडी हो गया है। इसके बाद से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो ओपन सोर्स में, गिटहब पे जाके किसी भी रिपोजिटरी में नहीं, लेकिन एक ऐसी रिपोजिटरी में, वो रिपोजिटरी जो कि कोई मेंटेनर रन कर रहा है, यानी कि ऐसी रिपोजिटरी जिसमें हैकटोबरफेस्ट का टॉपिक नेम हो। मैं फॉर एन एग्जांपल दिखा देता हूँ, एक सेकंड ना, लाइक मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड। जैसे एक ये रिपोजिटरी मुझे मिली थी किसी की, तो देखो यहाँ पे क्या सीन है। देखो अगर आप मेरे साथ अगर अभी देख रहे हो तो ये अबाउट सेशन में हैकटोबरफेस्ट का एक टॉपिक मेंशन्ड है, हैकटोबरफेस्ट एक्सेप्टेड टॉपिक मेंशन्ड है, ठीक है। इस पे ऑलरेडी काफ़ी सारी पुल रिक्वेस्ट आई थी लास्ट ईयर भी और ये इस ईयर भी वर्क कर रही थी फिलहाल। मुझे नहीं पता कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। तो एक ये पुल रिक्वेस्ट आप इस पर जनरेट कर सकते हो। इसी टाइप की रिपोजिटरीज होती है, इन्हीं में अगर आप करना चाहो तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, या फिर आप अगर चाहो तो सीधे आप सर्च बॉक्स में जाओगे और वहां पे हैकटोबरफेस्ट डाल दोगे ना तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे हैकटोबरफेस्ट में जाके आप एक सेकंड, सॉरी मैंने गलत जगह ये आप अपने में सर्च कर रहे हो आपने? हाँ वही सर, गलती हो गई। यहाँ पे आप डालोगे हैकटोबरफेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे ही आपको सीधे टॉपिक्स में मिल जाएगी। देखो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, देखो हैकटोबरफेस्ट का यहाँ टॉपिक देखो अवेलेबल है, हाईलाइट पे ही है बिल्कुल। इस पे जाओगे, काफी सारे यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है पुल रिक्वेस्ट के लिए। जहाँ पे भी ओपन रिक्वेस्ट हो वहां पे जाके आप अपनी पुल रिक्वेस्ट जमा कर सकते हो, और अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो आपका एक वैलिड पुल रिक्वेस्ट काउंट हो जाएगा वो, है ना। और आप उस पुल रिक्वेस्ट को 14 डेज वेट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगी, अगर आपने जेन्युइन पुल रिक्वेस्ट करी है और क्वालिटी लेवल रिक्वेस्ट थी वो, है ना। तो वो आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी और 14 डेज बाद या फिर 28 डेज जो भी इसका टाइम पीरियड है, यानी इस पूरे मंथ के लिए हैकटोबरफेस्ट वैलिड है। इस मंथ में अगर आप 4 पुल रिक्वेस्ट डाल देते हो जो कि वैलिड हो और काफी मतलब लेवल तक, एक क्वालिटी लेवल तक हो, और वो इन जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे ये पब्लिक एपीआईज की एक यहाँ पे अवेलेबल है। सो ये हैकटोबरफेस्ट वेरीफाइड है, यहाँ पे हैकटोबरफेस्ट का टॉपिक मेंशन्ड है। अभी तो फिलहाल ये ओपन है, यहाँ पे आप चाहो तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कोड्स डाल सकते हो, है ना। तो जैसे आप यहाँ कंट्रीब्यूट करोगे और आपकी 4 पुल रिक्वेस्ट पूरी हो जाएंगी और वो अप्रूव्ड हो जाएंगी, तब आपके पास आपकी हैकटोबरफेस्ट की जो प्रोफाइल है वहाँ पे एक रिडीम्शन कोड आएगा। आप उस रिडीम्शन कोड का यूज करके अपनी स्वैग शर्ट या फिर आप चाहो तो अगर ट्री प्लांट करना चाहते हो तो वो आप रिडीम कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और एक छोटी सी चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो अगर करना चाह रहे हो तो एक जेन्युइन जगह पे अगर आप करते हो तो वो काफी अच्छा रहता है ना यार। लास्ट ईयर भी काफी सारे इश्यूज आए थे, आई गेस तरुण सर भी बताएंगे आपको, है ना। तरुण सर आपने भी देखा होगा ना सर, लास्ट ईयर काफी सारे लोगों ने फॉल्स रिक्वेस्ट बनाई थी, बिल्कुल फेक टी शर्ट से, वो जरा सी 4-4, 5-5 लाइन के कोड डाल के कैलकुलेटर का प्रोग्राम डाल दिया उन्होंने। और सर आपका माइक ऑफ है। सॉरी,
हाँ, एंड इस बार तो इन लोग ने मेंटेनेंस का जो प्रोसेस रखा है वो थोड़ा सा स्टिफ किया है, तो ट्राई करना कि वो रिपोजिटरीज जिसमें वो कह रहे हैं कि बस कोड सबमिट कर दो अपना किसी भी लिंक लिस्ट को एडिशन का कुछ करके, वो जैसे अभी कनिष्क ने भी एक रिपो दिखाई थी, तो वैसे में ट्राई करना कि वो प्रिवेंट करो। एंड एक्चुअली जो कोई प्रोजेक्ट है जिसमें कोई छोटा सा प्रोजेक्ट है उसमें आप कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, तो ट्राई करना कि उसमें करो, क्योंकि उसके वैलिड अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे इस बार ये लोग, क्योंकि लास्ट टाइम भी काफ़ी इश्यूज आए थे, लोगों ने फेक रिपोजिटरीज बना दी थी। कई लोग ऐसा कर रहे थे कि जैसे मैंने रिपो बना ली तो कनिष्क मेरे में पुल रिक्वेस्ट डाल रहा है, उसने रिपो बनाई मैं उसके में डाल रहा हूँ। सो दिस इज़ व्हाट पीपल आर फॉलोइंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस काफ़ी सारे PRs आ गए थे, काफ़ी प्रॉब्लम हुए थे। तो इस बार दे हैव अप्रूव्ड, लाइक दे हैव रेज्ड द बार ऑफ वैलिडेशन ऑफ PRs। हेलो कनिष्क। हाँ, वो बताया क्या वो अपनी रेपो में हैकटोबर फेस्ट टॉपिक कैसे डालते हैं? हाँ, एज अ मेंटेनर बता दो। अगर कोई मेंटेनर है, ठीक है, इन केस अगर कोई मेंटेनर है तो हैकटोबर फेस्ट टॉपिक डालने के लिए उसे कुछ नहीं करना है, सिंपली एक अपनी रिपोजिटरी में जाना है। लाइक मैं भी दिखा देता हूँ, मैं अपनी कोई रिपोजिटरी खोल लेता हूँ, एक सेकंड। पार्टिसिपेंट्स को भी अपनी रिपोजिटरी में डालना होगा टॉपिक? नहीं, पार्टिसिपेंट्स को डालना कंपलसरी नहीं है भाई। नहीं, अगर आप प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहते हो। हाँ, वैसे तो जहाँ तक मैंने देखा है ना, केवल उसी रिपोजिटरी में मतलब डालना है जहाँ पे हैकटोबर फेस्ट एक्सेप्टेड का या फिर हैकटोबर फेस्ट का खुद का वो हो, टॉपिक मेंशन हो, उन्हीं में कंट्रीब्यूट करना है। नहीं, बट ऐसा है ना कि अगर मान लो मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है एंड आई वांट टू गिव इट फॉर द हैकटोबर फेस्ट ओपन कंट्रीब्यूशन, तो मैं उस पर टॉपिक ऐड कर दूंगा एंड तो वो भी उसका पार्ट बन जाएगा। मतलब मैं अपनी रिपो में टॉपिक ऐड कर दूंगा और एज अ मेंटेनर रजिस्टर कर दूंगा हैकटोबर फेस्ट। हाँ सर, वो मेंटेनर रजिस्टर करने पे सर वो चीज़ अवेलेबल है एज अ मेंटेनर। अगर आप लेकिन उसको कवर करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी सब इनिशियल स्टेज पे ही है, तो आई डोंट थिंक कि दैट मेक्स मच सेंस। अच्छा, हैकटोबर फेस्ट पे कोई क्वेश्चंस हैं? आई थिंक होंगे क्योंकि नया इवेंट है, फर्स्ट टाइम हो रहा है आप सबके लिए, तो एक बार बता दो अगर कोई क्वेश्चंस या कोई क्वेरीज रहते हैं वी विल सॉल्व। कोई क्वेरीज है तो प्लीज पुट अप कर लो भाई, क्योंकि इवेंट काफ़ी कूल है। ओपन जो लोग GSOC के लिए एम कर रहे हैं, क्योंकि आई नो बहुत सारे लोग अमित दत्तरवाल और इन सब की वीडियोस देख देख के GSOC के दिमाग में बहुत बैठे होंगे भरे हुए कि GSOC करना है। तो GSOC के लिए द प्राइमरी क्राइटेरिया इज यू हैव ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड टू ओपन सोर्स। आपका ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ऑलरेडी, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो हैकटोबर फेस्ट हो गया या फिर विंटर ऑफ कोड है जो IIIT कल्याणी, वी आर ऑल्सो प्रमोटिंग दैट इवेंट विंटर ऑफ कोड। तो वो जैसी चीज़ें हैं, तो उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करके अपने वैलिड PRs बढ़ा सकते हो एंड अपना GSOC की प्रोफाइल को इम्प्रूव कर सकते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, वैसे कोई है मतलब आई थिंक कोर में तो होगा ही, कनिष्क और सब लोग एम कर ही रहे होंगे आई थिंक GSOC के लिए, और कोई है जो GSOC के लिए एम कर रहा है? हाँ सर, GSOC का एम तो है लेकिन अभी थोड़ा प्रिपरेशन चल रहा है। हाँ वो तो है, बट आपका ऑलरेडी वैलिड कंट्रीब्यूशंस है ना, तो प्रोफाइल में ऑलरेडी एक बूस्ट है आपके पास ऑलरेडी एक वैलिड लेवल पे। एक छोटी सी चीज सजेस्ट करूँगा, देखो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट काफी लोग इसलिए नहीं करते हैं, सोचते हैं कि यार मैं अपना प्रोजेक्ट अगर गिटहब पे डाल दूंगा कोई कॉपी करके यूज कर लेगा तो क्या फायदा रहेगा, है ना। काफी लोग इस वजह से नहीं करते कि यार ये कुछ लोग इंट्रोवर्ट भी होते हैं, ये सोचते हैं कि यार मैं अपना प्रोजेक्ट क्यों शो ऑफ करूँ किसी को। कुछ लोग ऐसे रिस्ट्रिक्शन बेस भी करते हैं, लेकिन हाँ अगर आप गिटहब पे कुछ प्रोजेक्ट डालते हो तो काफी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी में आप वो प्रोजेक्ट डाल रहे हो, ये समझो। कुछ नहीं तो अगर देखो उस प्रोजेक्ट में कुछ कमियां भी होगी ना, तो कोई ना कोई उसे स्ट्राइक आउट करके आपको जरूर कहीं ना कहीं बता देगा। मैं अपना ही बताऊं तो मैंने एक ऐसी प्रोजेक्ट डाला था, मैं जब JS स्टार्टिंग में सीख रहा था थोड़ी थोड़ी, तब मैंने स्नेक गेम डाला था। तो एक ने मुझे डायरेक्टली, मतलब पता नहीं किसी का, मेरे को डायरेक्ट एक आया PR आया, उसने उसमें कुछ ऐसे चेंजेस बताए जो मुझे काफ़ी ठीक लगे। तो उसने मुझे बताया कि आप क्या क्या चीज़ें और ऐड कर सकते हो, किन चीज़ों से आप उसे और बेटर कर सकते हो। तो एक आइडिया मिलता है यार, ओपन सोर्स एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है और बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो इस चीज़ पे काम करते हैं। सो डेफिनेटली आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, कुछ नया ही सीखोगे और एटलीस्ट कुछ तो आएगा ही आएगा। अच्छा, अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज गिटहब और हाँ कंटिन्यू करो। हाँ करो सर आप बोलिए। नहीं कर लो मैं भी आया। नहीं एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा था, मतलब थोड़ा मतलब एक नया एनवायरनमेंट भी मिलता है, काफी कुछ नया भी सीखने को मिलता है, बस वही चीज कह रहा था सर मैं। कनिष्क, एक मेरे पास DM में वो आई है क्वेश्चन कि व्हाट इज अ पुल रिक्वेस्ट। तो पुल रिक्वेस्ट मैं बता देता हूँ।
अगर कोई पुल रिक्वेस्ट के बारे में अच्छा। पूछ रहा है तो चलो बता देते हैं। अच्छा, इज इट पॉसिबल हम एक छोटा सा डेमो दे पाएँ पीआर का, मैं या आप में से कोई? कूल रहेगा वो। सर वो फिर पुल रिक्वेस्ट में दिखा दे तो एक छोटा सा कोई एग्जांपल देते हैं। हाँ, उसमें मेरी गिटहब सर्च कर लियो और मेरी किसी HTML वाले पे पीआर करके दिखा दी। ठीक है, जब तक हाँ। कनिष्क ये कर रहा है, मृदुल के पास एक क्वेश्चन है। भैया हमें इस चीज के बारे में जानकारी है नहीं, अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, एक तरीके से आप लेमैन वाले तरीके से बता दो थोड़ा सा। लेमैन वाले तरीके से बता देते हैं। ओके, तो कहाँ से डाउट है मुझे बताओ, क्या चीज़ पहले नहीं क्लियर हुई है? पहले मुझे तो इवेंट के बारे में क्लियर हुआ, इवेंट क्या है, पहले वो नाम क्या है और करना क्या होता है वो क्लियर हो गया। हाँ भैया वो क्लियर है। गिटहब अकाउंट है। अच्छा हाँ भैया है। हाँ, तो इसके अंदर करना क्या होता है, बेसिकली आपको किसी और के प्रोजेक्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट्स देने होते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पुल रिक्वेस्ट। एंड अगर आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है या फिर वो आपकी पुल रिक्वेस्ट को मर्ज कर लेता है अपने कोड के अंदर, ठीक है। पीआर क्या होती है, कैसे मर्ज होती है, अभी हम डेमो दे देते हैं आप लोग को, एक जल्दी से छोटा सा डेमो। कनिष्क आप प्रिपेयर करो इतने से, ठीक है, एक क्विक डेमो हम दे देते हैं। हाँ, तो अगर वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा ना, सर मैं डायरेक्टली कर लूं सर? हाँ डायरेक्टली करेंगे, मतलब ऐसे रुको, मैं एक बेसिक प्रोसेस शुरू कर लेते हैं। ठीक है, रुको मैं करता हूँ, मैं एक बार डेमो, ठीक है। मैं करूँ कनिष्क, आप कर रहे हो? आप कर रहे हो? मैं करूँ? सर आप कर दो कोई वैसे बात नहीं। ठीक है, नहीं विजिबल हो गई। सर मैं कर दूं या आप कर रहे हो? मैं करता हूँ, चलो मजा आएगा। जस्ट अ सेकंड मुझे। ठीक है, मेरा स्क्रीन विजिबल है? तरुण भैया हाँ, स्क्रीन विजिबल है ना? ठीक है, तो एक बार देखते हैं जल्दी से प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से हम पीआर डालते हैं, ठीक है। मैं मतलब पूरा एंड टू एंड प्रोसेस दिखाऊंगा कि जब आपको कोई रिपोजिटरी मिलती है, वैलिड रिपोजिटरी जिसमें आपको पीआर डालनी होती है, तो हाउ विल यू, आप कैसे पूरा प्रोसेस करोगे, ठीक है, हाउ विल यू डू दैट। तो अभी आई थिंक किसने, प्रखर ने अपना गिटहब अकाउंट दिया था ना? हाँ भैया, यूजर नेम दिया मैंने। ठीक है, चलो तो प्रखर के अकाउंट में वैलिड पीआर डाल। कोई रिपो बनाई है जो हैकटोबर फेस्ट में हो, या कोई भी हैकटोबर फेस्ट में? हाँ, एक रॉक पेपर सीजर वाली हैकटोबर फेस्ट में, या अगर आपको जैंगो की लेनी है तो ब्लॉग वाला ले लो। कौन सी लूँ? अगर जैंगो की लेनी है तो ब्लॉग वाला है, ब्लॉग वाली रिपोजिटरी ऊपर। ब्लॉग ये वाली? हाँ ये वाली। ठीक है, दिस सीम्स कूल। ओके, तो ये वाली हमारी रिपोजिटरी है, ठीक है। लेट्स से ये रिपोजिटरी हैकटोबर फेस्ट में क्वालिफाई कर रही है एंड यू वांट टू मेक अ पीआर इन दिस रिपोजिटरी। सबसे पहले आप इस रिपोजिटरी को क्लोन करोगे, ठीक है। क्लोन करने के लिए यहाँ HTTPS में ये जो URL रहता है, आपको इसे उठाना है। आप लोग का सबका गिट का अकाउंट बना हुआ है, तो आई वांट यू टू मेक श्योर कि आप लोग का, अगर लिनक्स यूज़ कर रहे हो या विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, दोनों केसेस में टर्मिनल पे, ठीक है, आप लोग का वो चलना चाहिए, क्या कहते हैं, आपका गिट चलना चाहिए। तो एक बार गिट डाल के देख लेना, अगर आउटपुट आ रहा है तो इट मीन्स कि आपका गिट काम कर रहा है। अगर आउटपुट नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ जाओगे और लिखोगे git बैश, और ये जो पहला डाउनलोड लिंक है ना, यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इंस्टॉल करके आपका गिट चलने लगेगा। तो लिंक ले लो और एक बार प्रोसेस ध्यान से देखें, रिकॉर्डिंग हो रही है तो कोई इशू होता है तो दोबारा वो देख सकते हो। तो अगर आपने गिट नहीं चल रहा आपके विंडोज़ टर्मिनल पे, मैक टर्मिनल पे, लिनक्स टर्मिनल पे, लिनक्स तो चल ही रहा होगा, नहीं चल रहा इनकेस, तो यहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, चलने लगेगा, ठीक है। तो अज्यूमिंग कि आप लोग का गिट काम कर रहा है प्रॉपर्ली एंड आपको एक रिपोजिटरी मिल चुकी है, लेट्स सी कि कैसे प्रोसेस करना है। तो मेरे को जो रिपोजिटरी मिली है मैं इसको क्लोन कर लूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ HTTPS वाला लिंक कॉपी किया है एंड ठीक है, एंड ये रिपो पूरी आपके में क्लोन हो जाएगी। तो अगर मैं इसमें चाहूँगा
ठीक है। तो देखो ये मेरी रिपोजिटरी खुल गई, यहाँ पे मेरे को सारी फाइल्स देख सकता हूँ मैं। अब मैं इस रिपो को इसमें पुल रिक्वेस्ट डालने के लिए पहले आपको इसका कोड बेस समझना पड़ेगा, राइट। कोड बेस बिना समझे तो आप इसमें PR डाल नहीं पाओगे। तो उसके लिए व्हाट आई विल डू इज ठीक है। तो ये मेरा रिपो आ गया मेरे पास। तो जो रिपो मैं यहाँ देख रहा था क्लियर, जिसमें मेरे को PR बनानी थी, उस रिपो को मैंने यहाँ पे क्लोन कर लिया। ठीक है, यहाँ मेरे पास रिपो आ गई। अभी जो आपकी अच्छा, अब रिपो के बाद गिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ब्रांच। तो एक रिपोजिटरी के अंदर डिफॉल्ट ब्रांच होती है। ठीक है, तो ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या आता है, गिट का इंपॉर्टेंस क्या है? गिट का इंपॉर्टेंस है वर्जन कंट्रोल, राइट। कि हम वर्जन्स को कंट्रोल कर सकें, हमारे पास सेम कोड का अलग अलग वर्जन रहे। ये प्रखर का वर्जन है, ये मेरा वर्जन है, कनिष्क का वर्जन है, तो एक ही के अंदर मल्टीपल वर्जन्स रहें, उसके लिए वी हैव ब्रांचेस। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास एक ब्रांच मेन वाली बनी हुई है। ठीक है, जो मास्टर ब्रांच है, आपको इसमें काम नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। आप जो क्लोन करोगे वो आपकी मेन ब्रांच खुलेगी, आपको मेन ब्रांच में काम नहीं करना है, आपको एक नई ब्रांच बनानी है। ठीक है, VS कोड से अगर यार ये लोग ये सारे काम करते हो ना, तो VS कोड मेक्स इट डैम सिंपल टू डू ऑल दीज थिंग्स। जैसे मेरे को ब्रांच बनानी है, मैं सीधे मेरी ब्रांच दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने अपना नाम दे दिया, ओके, एंड ये मेरी देखो ब्रांच बन गई, यहाँ पे ये ब्रांच बन गई मेरी, राइट। अब क्या करूँगा, अब मैंने पूरा कोड बेस देखूंगा एंड आई विल सी कि मैं क्या चेंज कर सकता हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो मान लो मैं इसको पूरा, अब वो अरे यार पूरा वो कोड का प्रोसेस से जेंगो है, तो जिसको जेंगो आती है वो क्या करेगा, वो पहले इसका डिपेंडेंसीज जितनी है वो इंस्टॉल करेगा और फिर देखेगा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। सो दैट इज डिफरेंट फॉर एवरी रिपोजिटरी। ठीक है, हर एक रिपोजिटरी के लिए अलग अलग है। मान लो तुम कोई रिपोजिटरी यूज़ कर रहे हो जिसमें केवल कोड डालना है, तो मान लो मैं इसी के अंदर एक नई फाइल मैंने बना दी, आई कॉल इट arun.3y। ठीक है, मैंने एक फाइल बनाई एंड मैंने इसके अंदर सिंपल एक मेथड बना दिया, और दिस इज माय इंट्रोडक्शन टू अक्टूबरफेस्ट डेमो। ठीक है, आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो सारे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने एक चेंज ये किया, मान लो एक मैं ये तो फिक्स है, ठीक है, मीडिया है, और ये मान लो URLs है ना, उसके व्यूज़ में चलते हैं। ओके, सो आपको ये सारे चेंजेस नहीं करने जो मैं कर रहा हूँ, आप कुछ भी अपने हिसाब से चेंज करोगे। ठीक है, रेलिवेंट चेंजेस। दिस इज एन अबाउट, मैंने एक चेंज ये कर दिया, ठीक है, और तो मुझे कोई चेंज लग नहीं रहा, तो लेट्स से मैं इतनी चेंजेस कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब एक बार मेरे चेंजेस हो गए तो मैं अपनी ब्रांच पे चेंज किया ना मैंने, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा। ठीक है, यहाँ से दिखाता हूँ मैं टर्मिनल से, जो लोग VS कोड नहीं यूज़ करते उनके लिए भी दिखाएगा। तो मैं क्या करूँगा, टर्मिनल से मैं मेरी ब्रांच में हूँ। ठीक है, ये करना बहुत आसान है, गूगल कर लेना कि ब्रांच कैसे दिखती है, वो दिखने लगेगी। तो अब मैं देखूँगा गिट स्टेटस, मेरा गिट स्टेटस दिखा रहा है कि मेरी ब्रांच तरुण पे, ठीक है, मेरी ब्रांच तरुण पे जो चेंजेस अभी कमिट नहीं हुए हैं कौन कौन से हैं। एक मैंने ये फाइल मॉडिफाई करी है, और ये फाइल मैंने अनट्रैक्ड फाइल है, मतलब नई फाइल बनाई है। अनट्रैक्ड फाइल कौन सी होती हैं, वो फाइल जो अब तक ट्रैक नहीं है, जो नई फाइल बनाई है। सो दिस इज अ न्यू फाइल विच आई हैव क्रिएटेड, दिस इज अ फाइल विच आई हैव मॉडिफाइड, एंड मेरे को इसको पुश करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले गिट ऐड डॉट मतलब सारी फाइल, तो जितनी भी फाइल मॉडिफाई हुई है वो सारी मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ऐड करो, देखो गिट का प्रोसेस समझना बहुत आसान है, ऐड करो, कमिट करो, पुश कर दो। ठीक है, ऐड किया, गिट कमिट करूँगा माई डेमो, ठीक है, और गिट पुश कर दूंगा। ओके, सॉरी, नई ब्रांच बनाई है मैंने, भूल गया मैं, अभी वो रिमोट पे एक्सेस नहीं करती। परमिशन टू प्रेफर सबना गिट डिनाइड, ये प्राइवेट रिपोजिटरी है क्या? नहीं तो पब्लिक है, ब्रांच को मना कर रहा है ये, यहाँ से करके देखते हैं।
You don't have permissions to push. ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। भैया वो उसने आपको कोलैबोरेटर में वो नहीं किया है ना, तो इस वजह हाँ, से हाँ। आप पोस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं है। फोर्क बना के पीआर मारना पड़ेगा। हाँ, मैंने फोक करके बना लिया। ठीक है, हाँ, तो ये एक इशू आया, आई थिंक मैंने थोड़ा सा ओवरलुक किया। तो मैंने क्या किया, जो मेरी रिपो थी ना, ब्लॉग वाली जो रिपो थी इसकी, जिसमें मेरे को कंट्रीब्यूशन करना था, तो मैं सीधे इसमें नहीं बना सकता, तो मैंने क्या किया था, इसको फोर्क कर लिया। ठीक है, और जब मैंने इसको यहाँ से फोर्क करूँगा तो मेरी एक अपनी कॉपी बन जाएगी। तो अगर मैं अपने अकाउंट में देखूंगा जाके, तो इसकी कॉपी बन चुकी होगी मेरे अकाउंट में। क्या नाम था, ब्लॉग करके नाम है ना, ये देखो, ये बन गई है। ये देखो, ये रिपो बन गई है, यहाँ लिख के आ रहा है कि ये आप मेरे अकाउंट से बनी है। मतलब इस वाले ओरिजिनल रिपो से मैंने फोक किया है, और फोक करके मैंने उसमें अपनी जो ब्रांच है वो पुश कर दी। एंड लास्टली यहाँ पे जो ऐसे करके लिख के आ जाएगा, तो अगर तुम पेरेंट रिपो में जाओगे तो ऐसे करके उसमें लिख के आ जाता है कि यहाँ पे तरुण नाम की जो ब्रांच है उसने कुछ पुश किया है। ठीक है, और ये सारे काम आपको खुद ही करने हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे जाओगे, अपना रिपो बनाओगे, अपना पुल रिक्वेस्ट बनाओगे, तो ये आ जाता है ओपन अ पुल रिक्वेस्ट, एंड यू कैन राइट एनी कमेंट जो आपने चेंजेस किए, रेलिवेंट चेंजेस एक्सप्लेन करने के लिए उसको आप यहाँ पे लिखोगे कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो मैंने आई हैव एडेड सम कमेंट्स, तो मैंने कुछ कमेंट्स ऐड किए, मैंने यहाँ बता दिया मेंटेनर के लिए, और यहाँ पे मैंने पीआर क्रिएट कर दिया। ठीक है, अभी ये पहले चेक करता है मेरी पीआर मर्ज हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी एक पीआर क्रिएट हो गई। तो अब अगर प्रखर, अब इतना काम आपको करके छोड़ देना है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। आपने अपनी पीआर क्रिएट कर दी अपने अकाउंट से टू दिस पर्टिकुलर रिपोजिटरी जिसमें आपको बनानी थी। ठीक है, एक पीआर मेरी क्रिएट हो गई। अब क्या करेगा प्रखर, अब अपनी स्क्रीन शेयर करोगे प्रखर एक मिनट? हाँ भैया करता हूँ। हाँ, करना। ठीक है, आप लोग को बस इतना ही करके छोड़ देना है, वैलिड पीआर यही है। ठीक है, अब प्रखर के पार्ट पे क्या होता है, प्रखर कैन सी ऑल द पुल रिक्वेस्ट जो आई हैं। तो उसे यहाँ मेरी पीआर दिख रही है कि ये पीआर इस बंदे से इतने बजे आई है। ही कैन ओपन इट अप, उसे ओपन करना पीआर, तो वो ओपन कर सकता है, वो देख सकता है कि मैंने क्या चेंज किया है, कौन कौन सी फाइल्स में चेंज किया है, एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, वो सब देख सकता है। एंड अगर वो उससे सेटिस्फाई होगा, ठीक है, तो वो मेरी पीआर पे तो मर्ज कर देगा या अप्रूव कर देगा। ठीक है, अगर साइड में आप क्लिक करोगे तो अप्रूव का भी ऑप्शन आता है। ये है ना मर्ज कमिट क्रिएट करने का। ठीक है, तो इधर से ही मेरी पीआर को मर्ज कर देगा। एंड वंस माई पीआर गॉट मर्ज, तो हैकटोबर फेस्ट वाले कैन ट्रैक डाउन कि आपका पीआर मर्ज हो चुका है, अप्रूव हो चुका है, एंड दे विल मार्क इट एज वैलिड। अगर आपके चेंजेस वैलिड हैं तो, अगर आप कुछ डॉट, जैसा कनिष्ठ ने बताया, अगर डॉट सेमीकोलन या कुछ ऐसा डालोगे और वो भले मर्ज हो जाए बट इट विल नॉट बी काउंटेड। पहले तो मेंटेनर उसे नहीं मर्ज करेगा, और अगर वो मर्ज कर भी देता है, आपका दोस्त है वो मर्ज कर देता है वो, तब भी जो प्रोजेक्ट मेंटेनर्स हैं आपके डिजिटल ओशन के, दे विल मार्क इट एज इनवैलिड पीआर, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि इसमें कोई वैलिड चेंज नहीं है। जैसे मेरी ये पीआर है तो ये भी तरीके से इनवैलिड है, मैंने कुछ कमेंट्स ऐड किया जिसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं प्रॉपर फाइल को पूरा कमेंट आउट कर दूं, कमेंट डॉक्यूमेंट बना दूं, तब वो उसका वैल्यू है, बट एक दो कमेंट ऐड करके उसका कोई वैल्यू नहीं है। सो दैट इज इनवैलिड पीआर, बट दिस इज हाउ यू क्रिएट अ पीआर। पुल रिक्वेस्ट ऐसे ही क्रिएट की जाती है। कोई क्वेरीज हैं तो बता दो एक बार, दोबारा करना है तो दोबारा बता दो एक बार। बट मृदुल, आपका डाउट सॉल्व हुआ क्या? मृदुल, आर यू देयर? ओके, मैं सॉल्व। पीआर कैसे क्रिएट करना समझ आया? प्रोजेक्ट फोक करो, क्लोन करो, बनाओ ब्रांच अपनी और पीआर डालो। ठीक है, 4 ही स्टेप्स हैं। Guys, any doubts in this? देवराज सर ने कुछ डाला है, क्या था, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो कैसे करना है। और सर देवराज भैया, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट मैं ला तो दूंगा, सॉल्व भी कर दूंगा, बट वो इनके लिए ज़्यादा हो जाएगा। इसका एक सेशन रख लेंगे, एक सेपरेट सेशन कर लेंगे गिट पे, वहाँ देख लेंगे सब पूरा, सॉल्व तो हो जाएगा। So guys, अगर किसी को हाँ
एंड अगर किसी को हाँ पर्सनली अगर मान लो PR रेस करते टाइम अगर पुल वो आता है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, अगर तो एक बार पिंग कर लेना मेरे को देवराज भैया को, विल लीड यू कि कैसे वो सॉल्व होगा। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बट नहीं, नॉट मी, ओनली पिंग तरुण, ठीक है, मैं उस चीज के लिए अवेलेबल बिल्कुल नहीं हूँ। तो देख लेंगे, ठीक है, एक बार पिंग कर लेना, कोई इशू नहीं। तो गाइस किसी का और कोई क्वेरी, कुछ फर्दर कोई बात कहना चाहता है? अगर कुछ मतलब रिकॉर्डिंग से प्रॉब्लम है तो हम रिकॉर्डिंग ऑफ करवा सकते हैं, है ना? देवराज सर भी यहीं पे है और तरुण भैया भी, तरुण भैया भी यही है, सत्यार्थ भैया भी है। कोई अगर अलग से क्वेरी है तो प्लीज पूछ सकते हो आप। कनिष्क रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। कनिष्क चौरसिया यहाँ पे है क्या?